I couldn't hear the audio in the montage. Yes. Did that play out or not? Anyway, so thank you very much for joining us. We are on Nation Now. I hope my voice is coming to you. आप देख रहे हैं नेशन नाउ, दीदी और मेरे साथ, और नेशन नाउ आपके साथ है, हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, हिंद, जय हिंद, जय। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Abaria Kojambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And in case you haven't subscribed to the channel, please do so. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. When you subscribe to the icon subscribe, click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest growing channel of the nation, Nation Now. Yeah, सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई व्यूअरशिप जिस चैनल की है पूरे हिंदुस्तान में, वो है नेशन नाउ, बिल्कुल आपकी का चैनल। और हमारे जितने भी दर्शक हैं केरला से, उनका स्वागतम to all our viewers in Kerala, from Tamil Nadu, वणकम to everybody। और आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और बाकी सब भी। Sorry. In the meantime, Pradeep ji, the news which is coming out of the border control in India is Gautam Gambhir stays. He is not going anywhere. They're not sacking him. I wonder when they're going to sack him. When? I think when we lose the T20 series, the T20 World Cup, which is going to be held again at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, is that when you're going to sack this man? Or when are you going to sack him? Sunil Gavaskar, of course, has come in support of Gautam Gambhir, and he says, अकेला गंभीर क्या करेगा? लेकिन गंभीर तो बोलता है वो अकेला है। गंभीर ने बोला, मैं चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लाया, मैं एशिया कप जीत के लाया। अरे तू कहाँ से आ गया भाई? तू तो कोच है। अगर आप एशिया कप भी जीते और चैंपियंस ट्रॉफी आपकी वजह से जीते, तो ये तीन सीरीज जो है, फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, against now South Africa at home and Australia in Australia, आपकी वजह से हारे। तो आप resign कीजिए, please step down. He has to resign, that's what everybody says. Most of the people who watch cricket, Yes. they are absolutely shocked the way the dismal performance of Indian team in our own soil. ये पहले वही होता था कि देश भर हम दुनिया भर हम लोग हारते थे, इस देश में आकर you can't defeat India in India, ऐसा था। मगर आज ये तारीख है कि everybody seems to be, we've been losing matches like anything. I mean, itne losses continuously. I think there's nothing but Gambhir has to resign on his own. Why should anybody tell him to resign? He has lost, he should resign. Kumble resigned even before anybody telling him. It's all written on the walls. And by the way, why am I hearing this disturbance in my ear? What's going on? Can you please stop it? Can somebody please stop that? What is this disturbance which is coming in my ear? What is going on here? I mean, I don't understand. Is everybody on a holiday mood? या सब लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं साउथ अफ्रीका से हारने के बाद कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। And by the way, you sent a message that I should put my mic on. My mic is on. Is your mic on? My mic is on. Mic is on. Yes. Everybody's microphone is on. What's going on? You have sent a message saying that put the microphone on. It's on, as far as I know. If it is not on, do let me know. But I am surprised, Pradeep ji, at what Mr. Sunil Gavaskar says. Sunil Gavaskar has come out in support of Gautam Gambhir. Maybe somebody in the BCCI told him to. After all, he earns crores from the BCCI. Just yesterday he was complaining. A few days back he was complaining. Yes. And now he seems to be turning everything on, saying support Gambhir. But I mean, everybody is out. How can you give? How much chance does one person get? That's right. How many chances? You can't just go on losing matches and expect. And why should the country bear with you? For what? And why should the country get depressed because Yes. of you? That's it. That's all I'm saying. My point is, in a team you got all-rounders, and you had only 3 specialist batsmen in a pitch like this, like Guwahati, and you did not even have Mohammad Shami in the team. The fact is, when these 3 guys, Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, and Mohammad Shami play together, that's the time when they are their most lethal. They work with each other. एक दूसरे को support करते हैं और आगे बढ़ते हैं. That is the formula that Ravi Shastri worked out. Now, as far as you guys are concerned, Mr. Gautam Gambhir and Mr. Ajit Agarkar, if you got a new kind of formula, sure, go ahead. But then it has to be victorious. I mean, it should be victorious formula. You can't have a losing formula. And You can't have a formula that loses. If you change some formula and you win, then the whole world is with you. But if you change some formula and lose, then nobody's with Then you. you got to explain yourself. Yes. But Pradeep ji, how do we lose?
408 रन से we've lost by 408 runs at home. We have never lost like that in 93 years. What's going on over here? And look at this man, look at this brazen, callous, petty, sadistic man. I mean, come on. Is that the coach you want? Other coaches have also lost, but the first thing they've done is gone over there and said, hey, listen, take it in on the chin. I am responsible. I am responsible. I take responsibility. Including John Wright, including everybody else. Good leadership spies the very fact that you accept defeat and you take all the captain. I mean, the leader takes all the responsibility on him. At least he should be inspired by Prime Minister Modi. He was a part. He was an MP from that BJP, from the BJP. He should be inspired from Prime Minister Modi कि हर हार said मैं जिम्मेदार हूँ मैं स्वीकारता हूँ. Yes, yes. That's what he said. So if he was from that party, he was their MP from that party, member of parliament from that party, he should have the courtesy of saying that I am responsible for the defeat. Now he makes it a combined that everybody is responsible. Everybody is equally responsible. Everyone, including Mr. Jay Shah. I think Jay Shah should intervene because I don't even know the name of the BCCI president. Do you? Who's the BCCI Sir, president? कांग्रेस और अखिलेश यादव जिस प्रकार से बार-बार ये कह रहे हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आप दूसरों को बोलते हो. What is the qualification of Jay Shah to lead? Now the ICC. He was the president of BCCI. No, he now might. he's the chairman of ICC. As on today, both Prime Minister Modi and Amit Shah are so powerful, they can appoint him anywhere. Yes. But आपने कहा कि अपने मेहनत और अपने हर चीज से आप उसको हासिल कीजिए. अब कौन से मेहनत जय शाह ने किया है कि वो वहां पर बैठे? Maybe he was the actual inspiration for Sunil Gavaskar, for Dilip Sardesai, for our Vinu Mankad, and for Lala Amarnath. Actually, they were all inspired by Jay Shah. You never know. His performance off the field, Yes. on the field, On the field, he was never there. Yes. Yeah, power is up. Chandu Bode, everybody learned from him. Mansoor Ali Khan Pataudi learned from Jay Shah. I think that's I think that's BJP is slowly losing its moral rights to say dynastic politics. That's right. And number two, the other thing also is, which is really galling and which is most insulting, which we didn't discuss yesterday, but I must bring that in right now before we go on to our guest and we start our show. ठीक है, politics तो चलता रहता है साहब, but cricket is a religion. याद रखिए, cricket goes across the board. Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Jain, Jew, Parsi, everybody loves cricket, including Buddhists. The South African coach said we are going to make India grovel, and they did it. किसी और कोच की कभी हिम्मत नहीं पड़ी हिंदुस्तान में आकर के इस किस्म की शब्दावली का प्रयोग करने के लिए. Everybody, from Kevin Peterson, Ben Stokes, Ricky Ponting, Steve Smith, Steve Waugh, everybody used to say India is the most difficult place to go to and defeat Team India. Now that fear is gone. So वो डर जो था वो गया. रोहित शर्मा नहीं है, आप विराट कोहली नहीं है, तो कौन डरेगा इस टीम से? That's right. Rohit Sharma and जब विराट कोहली was there, nobody dared to talk. Nobody dared because he used to roar back. That's right. Virat, same thing with Rohit Sharma. He used to excel performance. प्रदीप भाई जब विराट कोहली मैदान में उतरते थे टीम को लेकर के ऐसे लगता था कि शेरों की टीम आ रही है, नोच के खा जाएंगे उनको. आज की तारीख में जो बच्चे आ रहे हैं नीचे वो तो ऐसे लग रहा नहीं क्या है, बस हारे के हारे. No motivation. No motivation. I remember that I remember the six जो छक्का जो मारा था विराट कोहली against Pakistan. It was deemed as by Gavaskar. Sunil Gavaskar said that this is the shot of the century. That's right. That was the shot of the century. That was in Melbourne. Yes, how the hell could he? How could he hit this kind of a shot? And he described that the shot of the century. And I mean, that was the time when people were talking about them, talking about India. They were talking about Rohit Sharma. They were talking about Virat Kohli. और आज के तारीख में किससे बात करें? किसके बारे में बात करें? And look at our Ashwin. Do you remember his Ravichandran Ashwin's brains that actually resulted in victory on that particular Yes, wicket? yes. Because Shadab was bowling and he Correct. he just moved to the right, making it into a white ball, and that's how the scores were equal.
आपने आर अश्विन को भी बाहर कर दिया, रोहित शर्मा को भी बाहर कर दिया, विराट कोहली को भी बाहर कर दिया, मोहम्मद शमी को भी बाहर कर दिया। सरफराज खान की तरफ देखा नहीं, he scored 150 for God's sake against New Zealand, 150, 67 and 63 against England। वो उस आदमी को आप नहीं ले रहे, आप नीतीश कुमार रेड्डी को ले रहे हैं साहब। नीतीश कुमार रेड्डी जिसने रणजी ट्रॉफी के सीजन में, पूरे सीजन में सिर्फ 12 ओवर डाले हैं मोदी जी, 12 ओवर, और आपने मोहम्मद शमी को बिठा के रख दिया है। मोहम्मद शमी is completely fit to play Ranji Trophy, but he's not fit to play Test matches. What are you doing? What sort of logic is that? I mean, it's terrible, absolutely terrible. 140, 150 crore people in this country. Yes. I think one of the best teams we had, apart from the spinning trio of quartet, we had 3 or 4 pacers, and then you had Anil Kumble. That's right. I mean, it's amazing at that particular time. Anil Kumble was like a big bowler himself. Zahir Khan, Ashish Nehra, two Ashish left. Nehra, RP Singh. Yes, he got then, I Balaji, think, Venkatesh Prasad. Irfan Pathan. Yes, Venkatesh Prasad and that Srinath. Javagal Srinath. Javagal Srinath. I mean, why can't we produce? What are we doing with people today? और अगर आपको याद हो, गुवाहाटी में जब मैच खत्म हुआ है, लोग बोल रहे थे गौटी हाय हाय, गौतम गंभीर हाय, मोहम्मद सिराज को वहां जाना पड़ा, ऐसे करके बोलना पड़ा, यार चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? अब हार गए तो हार गए, सब लोग आ रहे हैं ना इकट्ठे। Look at Mohammad Siraj. He is going over there and defending Gautam Gambhir, and this Gautam Gambhir cannot defend his own team. Jesus, I mean, terrible, absolutely. Anyway, we'll discuss that in just a little while. Let's go straight across. I think we've got a couple of very, very, very important guests indeed with us, and let's go straight across to them, because let's see what is happening in the rest of the country. We will, of course, come back to cricket. Cricket is boom. It's like crazy. We've got Pooja Mishra ji with us. Pooja Mishra ji, namaskar. Pooja ji, namaskar. 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 Jai Hind, Jai Hind. How are you, ma'am? Thank you so much. Very good. Thank you so much for sticking around while I was ranting and raving against the cricket establishment. अब क्या है कि क्रिकेट में जब हिंदुस्तान हारता है तो सबकी हालत जरा खराब हो जाती है, मेरी तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सुशील व्यास जी, हाउ आर यू सर? व्यास साहब नमस्कार। Namaskar. Namaskar. नमस्कार। और मोहसिन हैदर साहब, हाउ आर यू? नमस्ते नमस्ते सर। नमस्कार, जय हिंद। अरे मोहसिन हैदर साहब, जय हिंद। मोहसिन हैदर साहब ऑफ द कांग्रेस, पिछली बार आप आए शो में, आप तो पूरा पूरा मुशायरा लूट के ले गए सर। सारी दुनिया सिर्फ आप ही के बारे में बात कर रही है। थैंक यू सो मच। जी। So nice of you, sir. And for the first time, we welcome Prashant Jagtap Saab of the NCP Sharad Pawar. Prashant Jagtap जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रशांत जगताप जी, क्योंकि पहली बार आप आए हैं नेशन नाउ के आरकेबी शो में, मैं सबसे पहले आप ही के पास जाता हूं। सर, शरद पवार साहब की स्टेटमेंट है और उससे काफी लोग जो हैं, काफी लोग उससे मुझे लगता है मुतमीन होंगे। वो सभी लोग जो हैं उसको शायद सपोर्ट करेंगे, बहुत लोग। सुशील व्यास जी नहीं करेंगे लिहाजा, लेकिन इसके बावजूद के सुशील व्यास जी शरद पवार जी को बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। शरद पवार साहब ने कहा है कि पब्लिक फंड को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने वोटों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लाडली बहन मध्य प्रदेश में, लाडकी बहन महाराष्ट्र में, और ये 10,000 रुपए जो आपने दिए हैं हर एक के अकाउंट में, कहां पर? बिहार में। अब वही प्लान शायद जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं महाराष्ट्र में, जो कॉर्पोरेशन में है, वहां पर इस्तेमाल होंगी। तो जगताप साहब, आप ये बताएं, क्या ये ठीक है? पब्लिक फंड्स फॉर वोट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन सर? प्रशांत जगताप जी बोलिए। महाराष्ट्र के साथ देश भर में चुनाव होते रहते थे जी। वो लोकसभा के हो, वो विधानसभा के हो, या फिर वो लोकल बॉडीज के हो। उस वक्त कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो या बाद में कोई भी पार्टी, जब वो चुनाव लड़ती थी, विपक्ष जब लेके चुनाव लड़ता था, तो वहां पे एक प्रोमिसेस लेते थे, उनके पास मैनिफेस्टो लेकर जाते थे कि हम आपका, हमारी अगर सीटें आती है, हमारी सरकार बनती है, तो फलाना फलाना चीज हम करेंगे, इस तरीके की डेवलपमेंट करेंगे, उस तरीके की डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन आज का जमाना बदल चुका है। अगर आपको क्या जीतना है तो इलेक्शन कमीशन को साथ में रख के, जेब में रख के आपको आप हर कुछ कर सकते हैं, या आपके मन में जाए जो भी कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन हो, उसी के साथ अभी बिहार में हर जो देखिए महिला उसको 10 रुपए दिए गए। उसी तरीके से अभी महाराष्ट्र के लोकल बॉडी के जो चुनाव हुए, उसमें महायुति का जो गठबंधन है, जो देवेंद्र जी फडणवीस, अजित दादा जी पवार और एकनाथ शिंदे जी की मिलीजुली जो सरकार है, उसमें अभी रेस लग चुकी है। तीनों पार्टी अलग अलग लड़ रही है। किसी उसी में अजित दादा पवार जी जो क्या यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बोलते कि तिजोरी मेरे हाथ में, आप मेरे पार्टी की सीट अगर ज्यादा चुनवा के दोगे तो ही आपको मैं फंड दूंगा। तो वही पर लेके बीजेपी के लीडर घूम रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि तिजोरी किसी के हाथ में भी हो
मालिक तो हमारा है, देवेंद्र फडणवीस तिजोरी का मालिक है। यानी इस तरीके से वो चल रहा है कि अगर लोटस को वोट करेगा तो ही उसके लिए नगर पंचायत में रोड डेवलपमेंट के लिए, पानी की लाइन डालने के लिए पैसा मिलेगा। जी। अगर हम विपक्ष को अगर चुनकर देंगे तो हम आपको 1 रुपए भी नहीं देंगे। यानी कहीं ना कहीं मतदारों को, वोटर्स को खरीद करने की जोरों शोरों में रेस लगी है। और उसी के साथ ये मतदारों को धमकाने का काम चल रहा है कि अगर आप देखिए सत्ता में बैठे पार्टी के साथ नहीं जाओगे तो इसके आगे आपको डेवलपमेंट के लिए 1 रुपए भी नहीं देंगे। जगताप, प्रशांत जगताप जी, सुप्रिया सुले जी ने हाईलाइट कर दिया इलेक्शन कमीशन को, जिस प्रकार से अनअपोज्ड लोग जीत के आ रहा है। ये अनअपोज्ड के परंपरा इतने लार्ज मार्जिन में महाराष्ट्र में हो रहा, लोकल बॉडीज में ये पहले हुआ नहीं था। रविंद्र चौहान जी ने ऑलरेडी कहा कि 100 लोग बीजेपी के अनअपोज्ड चुन के आए बिफोर द इलेक्शंस। चुनाव से पहले 100 लोग आए। ये लोग यूज ऑफ मनी, मसल पावर, मनी पावर जिस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, सुप्रिया सुले जी ने अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव वे थिंग्स आर। जगताप जी देखिए 1 मई 1960 को महाराष्ट्र में स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। तब से लेके आज तक करीबन 12 से 15 चुनाव लोकल बॉडीज के हुए। उसमें कभी एक वाकया हुआ कि करीबन एक अनअपोज्ड कॉर्पोरेट यानी काउंसिलर चुनकर आया। ये कभी गए 10-20 सालों में कभी तो होता रहता था। आज के तारीख में 100 के तादाद में 100 से ज्यादा सीटें यहाँ पे बीजेपी की अनअपोज आती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो विपक्ष में लेके जो कैंडिडेट आ रहा है उसको धमकाने का काम चल रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेके उसको विकत लेने का काम चल रहा है, उसको खरीदा जा रहा है। इस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं। लेकिन आज के दौर में नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस के दौर में यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति गंदी हो चुकी है। महाराष्ट्र में अभी मतदाताओं को भी विकत लेने की कोशिश की जाती है और उसी के साथ यहाँ पर उम्मीदवार विपक्ष के जो लोग आएंगे उनको धमकाने के साथ, ईडी सीबीआई का यूज करने के साथ यहाँ पर उसको पैसे देकर यहाँ की सारी इलेक्शन यहाँ पे अनअपोज कर देगा। यह प्राय चल रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय लोकशाही के लिए बड़ा डेंजरस होने वाला है। और मुझे ऐसे लगता है कि इसमें से अगर हम लोग सुधर नहीं पाए तो आगे शायद ऊपर वाला भी बचा नहीं। जगताप जी, एक सवाल आपसे है इसके पहले कि मैं अपने अगले गेस्ट के पास जाऊं, आपसे जानना चाह रहा हूं सर, ये जो परंपरा चली है, एक तो मनी फॉर वोट्स, मनी इन द बैंक इज इक्वल टू वोट्स इन द ईवीएम। नंबर 2, अजीत दादा पवार साहब ये बोलते हैं भाई वोट तुम्हारे पास है, पैसा मेरे पास है, याद रख लो। मालेगांव में बोला उन्होंने, इट्स ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि उनका लहजा है, वो तो ऐसे ही बोलते हैं। ये क्या मतलब हुआ? आपने क्या इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करी है सर? हैव यू गॉन टू द इलेक्शन कमीशन जगताप साहब? देखिए इंडिया अलायंस में या महागठबंधन में जो पार्टियां महाराष्ट्र में है जी, उन्होंने कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इस बात की सूचनाएं दी है। उस तरीके के लिखित क्या वहां पे लेटर्स गए, मेल्स गए, लेकिन उसके बावजूद क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र इसके ऊपर कोई इस बातों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये बात भी आज की तारीख में सच है। और उसी के साथ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी आपकी चुप्पी साधे बैठे हैं। उनको कहीं ना कहीं इस देखिए दरमियान नॉट ओनली महाराष्ट्र, देश के सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं देखिए उनको सुधार करने के लिए अगर अगला कदम उठाना पड़ेगा। अदरवाइज इस तरीके की देखिए जो खरीदारी चल रही है वो उस देश के लिए जरूर घातक ठहरे। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू डॉक्टर पूजा मिश्रा। पूजा मिश्रा जी, ये पहली बार सुना है कि परिषद के चुनाव में 100 से ज्यादा अनअपोज्ड लोग इलेक्ट हो गए। अनअपोज्ड बीजेपी के 100+। व्हाट इज गोइंग ऑन? वैसे अखिलेश यादव जी ने अभी उनकी स्टेटमेंट आई है परसों कि दे आर लुकिंग एट अ लीगल चैलेंज टू ऑल दीज वेलफेयर स्कीम्स which are announced just before the elections. इलेक्शन के पहले जो वेलफेयर स्कीम अनाउंस होती हैं जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, लाभार्थियों को जो पैसे दे दिए जाते हैं, जैसे 10,000 रुपए 1.5 करोड़ महिलाओं को दे दिए गए बिहार में, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को दिए गए, लेकिन फिर भी 1 करोड़ 20 लाख इज ऑलमोस्ट हाफ द इलेक्टोरेट। मैम 3 करोड़ के इलेक्टोरेट में या 3.5 करोड़ के इलेक्टोरेट में अगर 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 50 लाख लोगों के खातों में 10,000 रुपए आ गए तो इलेक्शन तो खत्म हो गया। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन बिहार। तो उसका लीगल चैलेंज क्या होगा उसको लेकर के अखिलेश यादव जी शायद स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अब आप बोले ना, प्लीज गो अहेड।
अ, आपको शायद जानकारी नहीं है कि जो बिहार में जो 10,000 दिए गए हुए थे, जी वो आचार संहिता लगने के बाद भी 3 किस्त गई थी। गई थी, जब जो जानकारी है है मैम, हाँ, गई थी जब मालूम है। जब आचार संहिता लागू हो गई तो 3 किस्तें गई थी। जी आप गई कह रहे लीगल चैलेंज क्या होता है? जी तो लीगल चैलेंज यही होता है कि इससे पहले बहुत सारी सरकारों ने ऐसे अनाउंसमेंट किए थे और पर ऐसा नहीं हुआ कि जब आपका आचार संहिता लागू हो गया हो तब ये स्कीम के तहत में फंड जो है अकाउंट में भेजे गए हो। नहीं, ऐसा तब नहीं हुआ था, तब रोक दिया गया हुआ था कि आचार संहिता लागू हो गया, अब सरकारी खातों से सरकारी पैसे नहीं जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब कि सिर्फ ये बिहार सॉरी दूसरे जो अपोजिशन की सरकार थी जहां जहां उस स्टेट में हुआ हो। उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की ही सरकार थी तब भी जो है इससे पहले वाले इलेक्शन में तब भी ये हुआ था कि 2022 वाले इलेक्शन में किसान निधि योजनाओं के तहत कुछ पैसे जाने थे जो आचार संहिता लगने के बाद में रोक दिए गए थे। जी तो अब बिल्कुल भाजपा को लगने लगा है, मैं इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा ऐसा लगता है कि एक ही जो है पत्ते के दो पहलू हो रखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ में कम्प्लीमेंट करते हुए काम करते हैं। ये आचार संहिता को भी ताक पे रख करके बिहार में 3 जो है किस्तें गई, तीन बार जो है फंड डिस्पर्स हुआ। और जो 7 नवंबर को होना था डिस्पर्स, वो रुका किस लिए? वो इसलिए रुका क्योंकि वहां पे कंप्लेंट की गई। कंप्लेंट हुआ जब इलेक्शन कमीशन के सामने में कि तीन जो है बार अमाउंट डिस्पर्स हो चुका है और 7 तारीख को फिर शेड्यूल डिस्पर्स होने के लिए, तब वो रोका गया। वरना जस्ट वोटिंग से पहले भी 10,000 का अमाउंट जो खाते फिक्स किए गए हुए थे उसमें डिस्पर्स होता। तो हम इसको लेकर के आगे बिल्कुल जाएंगे। इस तरीके की कोई भी हरकत अगर उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास करेगी सरकार तो हम बिल्कुल रेडी हैं कि हम इसके अगेंस्ट में लीगल आगे बढ़ते हुए जाएंगे। और इसी के अगेंस्ट में नहीं, हम तो एसआईआर में भी अगर धांधली हमें मिलेगी और हमारे पास में साक्ष्य मिलेंगे और धांधली जिस तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं साक्ष्य बिल्कुल मिलेंगे, हम तब भी लीगल जाएंगे। हम शांत बैठने वाले नहीं हैं, हम पूरी तरीके से जो प्रक्रिया उसको फॉलो करेंगे। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, राहुल गांधी जी ने क्लियर कट कहा कि बीएलओ के एक्सरसाइज के माध्यम से ओबीसी वोट्स को काटा जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यू आर डिलीटिंग ओबीसी वोट्स। राहुल गांधी जी का चार्ज है इलेक्शन कमीशन पर एसआईआर के माध्यम से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वोट चोरी। एंड अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि यस, हमारा जो राइट है वोट्स का, उसको अब राइट टू वोट इज अंडर थ्रेट। अखिलेश जी का यह स्टेटमेंट है, राइट टू वोट इज अंडर थ्रेट। पूजा जी, व्हाट इज हैपनिंग? डू यू थिंक दिस थिंग्स आर हैपनिंग? उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर चालू होगा? चालू हुआ है? प्रदीप, बिल्कुल चालू है। 4 दिसंबर को लास्ट डेट है, आपको जानकारी है? हाँ। कि 4 दिसंबर को एसआईआर के फॉर्म भरने के लास्ट डेट है। और आपको इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में 18 जिले ऐसे हैं जहां पे 2003 का इलेक्टोरल रोल ही नहीं है जी। वो इलेक्शन कमीशन के पास में है ही नहीं। और वो जानकारी कब होती है? जब समाजवादी पार्टी के बीएलए एसडीएम को वहां कॉल करते हैं, बोलते हैं यहाँ एसआईआर का फॉर्म भरने में परेशानी आ रही है और बीएलओस भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं, हमें अभी तक फॉर्म नहीं मिला हुआ है, कहीं से नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करें? तब वो जाकर के कहते हुए 15 दिन, एसआईआर को चलते हुए 15 दिन हो गए, तब एसडीएम कहती है कि जो 18 जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहां पे 2003 का इलेक्टोरल रोल अवेलेबल नहीं है, हम उन 18 जिलों में आते हैं, इसलिए एसआईआर का फॉर्म आप तक नहीं पहुंचा हुआ है। और फिर वो एक अलग प्रक्रिया बताती है कि हम यहाँ पे फिर इस तरीके से प्रक्रिया करेंगे। तो हमारे बीएलए ने कहा भी फिर आपको एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी, बीएलओ के साथ में बुलाती, बीएलए के साथ में बुलाते, आपको बताना चाहिए था कि यहाँ पे आपको ये जो 2003 का इलेक्टोरल रोल है वो नहीं मिल पाएगा, आपको दूसरे तरीके से एसआईआर फॉर्म भरना है। तो आप सोचिए कि बिना तैयारी के किस तरीके से काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जहाँ पे भी एसआईआर किए जा रहे हैं 12 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में भी बीएलओ जो है सुसाइड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक शिक्षिका का आपको लेटर देखा होगा, एक क्या जाने कितने ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं जो दर्शा रहे। इसलिए मुझे बीएलओ को कुछ कहने की इच्छा नहीं हो रही है, लग रहा है कि वो इतने परेशान है कि सुसाइड कर ले रहे हैं, वो जिस नौकरी में कार्यरत है वहां से रिजाइन कर ले रहे हैं। एक बीएलओ महिला जो शिक्षिका है वो अपने बेटे को लेकर के बैठ करके रो रही थी कि नहीं हो पा रहा है काम। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में 27 में इलेक्शन है और प्लेंटी ऑफ टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास में, उसके बावजूद भी पूरा प्रेशराइज करके रखा हुआ है कि नहीं आपको इतने समय में कर लेना है। प्रति बीएलओ 1100 से लेकर के 1000 तक मिनिमम जो है मैक्सिमम 1200 या 1300 वोटर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मिनिमम 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आप नहीं करने देना चाह रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम काटने की, तो ये तो इलेक्शन कमीशन की ऐसा लग रहा है बिल्कुल प्री प्लान तैयारी चल रही है, उनको आदेशित कर दिया गया हुआ है कि आपको वोटर लिस्ट से नाम हटा देने। पूजा मिश्रा जी, this is the first time I've heard, and after that I'm coming to Mohsin Naidar Saab, then I'll take
the overall very matured and balanced view of Advocate Sushil Vyas ji. But first, आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन से संबंधित जो एजेंट्स हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, जिनको कहा गया है कि भाई ये इंटेंसिव रिव्यू जो है ये कंप्लीट कीजिए, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं. इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया गया उन पे. I have never heard this before, ma'am. I have been a journalist for 43 years. I keep saying that. I learn something new every day. I had thought, very frankly speaking, जब मुझे लगता है कि वाहियात से वाहियात बात हो चुकी है, उससे भी ज्यादा वाहियात बात हो जाती है. अब आप बताएं पूजा मिश्रा जी, ये क्या है? आत्महत्या कर रहे हैं लोग. अब आप बताएं. राजीव जी, जी. राजीव जी, आपने शायद लेटर नहीं पढ़ा होगा वो शिक्षिका का, जो नोएडा की, जिन्होंने शिक्षिका पद से ही इस्तीफा दे दिया. उन्होंने किया हुआ है कि मुझसे ना तो शैक्षण का काम किया जाएगा और ना ही बीएलओ का काम कर पाऊंगी मैं. मुझे जो है 1127 वोटर की जिम्मेदारी दी गई हुई थी, जिसमें से मैंने 250 कर लिया हुआ, पर मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना प्रेशर, मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है. आपकी जब साइट काम करेगी तब तो वो काम करेंगे जो ऑनलाइन फीडिंग है. जब ऑनलाइन फीडिंग की स्पीड कम हो रखी है, एसआईआर उनको जाकर के समझा रहे हैं. एसआईआर का फॉर्म पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है. वहां पे हम ऊपर में अभिभावक का नाम डालते हैं, फिर नीचे कॉलम दे रखा हुआ है, उस कॉलम में डाला जाता है संबंधी का नाम. अब वो बीएलओ को जाकर के उनको समझाना बड़ा मुश्किल पड़ जा रहा है कि संबंधी का नाम आप डालेंगे किसका. संबंधी का नाम वो कह रहे हैं कि आप ऐसा संबंधी का नाम डालिए जो है 2003 में उनका वोटर लिस्ट में नाम रहा हो सकता है कि आपके अभिभावक का नहीं रहा हो, आप अभिभावक का नाम डाल रहे हैं, तो ऐसा संबंधी का नाम डाल दीजिए. पर वो तय ही नहीं है कि कितने दूर तक आप संबंधी जा सकते हैं. आप कोई भी संबंधी जा सकते हैं कि आपके नाना के भाई जो हो, आपके नाना के भाई के पिताजी हो, किस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, ये उस फॉर्म में भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, जनता को भी नहीं क्लियर हो पा रहा है. कहने को कह रहे कि नहीं बहुत आसान है, पर मुझे भी लगता है, मैंने फॉर्म को देखा हो कि कहीं ब्रैकेट में मेंशन कर देना चाहिए था कि ब्लड रिलेटेड आप संबंधी के पास जाएंगे, चाहे वो भाई हो. जो सच्चाई यही है कि चाहे वो आपके भाई रहे हो, आपकी बहन रही हो, आपकी माता जी रहे हो, आपके पिताजी रहे हो, उनमें से अगर कोई भी रहा हो तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं. उसके आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है. मेंशन करना चाहिए था, वहां पे नहीं मेंशन है. और इतना प्रेशर है बीएलओ के ऊपर में, आपको शायद जानकारी है कि नहीं है. उत्तर प्रदेश की मैं महज बात कर लूं तो 4 बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया हुआ है, 6 बीएलओ के ऊपर में एफआईआर दर्ज कर हो रखे हुए हैं, और जो है जिन्होंने रिजाइन कर रखा हुआ है उनके लिए सभी क्लियर नहीं आ रखी हुई है. और पूरे जहां जिन राज्यों में हो रहे हैं एफआईआर, सब जगहों से इस तरीके की खबर आ रही है कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे ये प्रेशर झेला नहीं जा रहा है. तो ये दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन बिना तैयारी के उनको भेज दिया हुआ है, उनको फिर प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं आपको 4 तारीख में ये करके दे देना है, जो कि पॉसिबिलिटी उनको नहीं दिख रही है. हमारा इलेक्शन कमीशन से कहना है कि आपके पास में समय है, आप प्रॉपर समय दीजिए ताकि बीएलओ को भी परेशानी ना हो, जो जनता है उनको भी परेशानी ना हो, उनको चीजें क्लियर होती रहे ना. आप सोचिए वो 18 जिलों की बात कर लीजिए जिनको पता ही 15 दिन बाद चल रहा है कि यहाँ पर 2003 का इलेक्टोरल है ही नहीं, तो आपको एसआईआर का जो फॉर्म नहीं मिल रहा है, एसआईआर का फॉर्म जो आ रहे हैं घर घर वोटर्स के पास में आ रहे हैं, वो ऐसे आ रहे हैं जैसे जो वोटर लिस्ट फ्रीज हुई थी उसका वो लिस्ट निकल करके आती है एक फॉर्म, और पैरेलल गैप दिया रहता है कि आपको फिल करना है. वहाँ पे आपका जो एपिक नंबर रहता है, आपकी फोटो रहती है और क्यूआर कोड रहता है, और साइड में गैप दिया रहता है कि अगर आपको जो लेटेस्ट फोटो लगानी है आप वहाँ पे लगा सकते हैं, और उसके बाद में आपको डाटा भरना है. वो आपको बीएलओ ही देगा, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्टोरल लिस्ट रखी हुई है वो वहां से दे रहे हैं रिसेंट का. फिर आपको बीएलओ ही देगा लिस्ट 2003 वाली, उससे कंपेयर करके फिर आप अपने अगर कोई संबंधी आपके 2003 में है तो उनका एपिक नंबर डालेंगे. तो ये परेशानी आ ही जा रही है. लेट मी गो टू मोहसिन हैदर साहब. इन्हें जो बीएलओ की अभी भी बात करी, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स की जो बात करी, उसके अंदर क्या है कि ऑफिशियल जो अभी डेथ टोल जो है वो कोई 6 के करीब का है, लेकिन बाकी सब लोगों ने कहा कि 9 के करीब लोग जो हैं वो या आत्महत्या कर चुके हैं, और तकरीबन 7 या 8 लोगों को हार्ट अटैक हुआ है. ये भी है. लेकिन सरकार की तरफ से, मोहसिन हैदर साहब सुनने वाली बात है, सरकार की तरफ से ये आ रहा है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं है कोई. अरे संबंध नहीं है यार, तुमने उसको इलेक्शन ड्यूटी पे, एसआईआर की ड्यूटी पे डाला, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली और आप कह रहे हैं कि संबंध नहीं है. एनीवे, आप बताएं सर, क्या है कि अपने जो बीएमसी के इलेक्शन होने वाले हैं, पीएमसी के इलेक्शन जो होने वाले हैं, 29 कॉर्पोरेशन में जो इलेक्शन होने वाले हैं, सब लोगों ने कुछ टाइम मांगा है कि भैया टाइम दे दो, 12 दिन दो, 15 दिन दो, 21 दिन दो, ताकि वोटर्स लिस्ट अपडेट हो सके. एनीवे, सुप्रीम कोर्ट विल हियर द मैटर टुमारो कि क्या इसको पोस्टपोन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आप बताएं मोहसिन हैदर साहब, अगर आप सिर्फ मुंबई की बात कर लें, मुंबई में आज की तारीख में
डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स इतने ज्यादा हैं कि हर पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी बोल रही है कि डुप्लीकेशन बहुत है, और फिर भी इलेक्शन कमीशन मान नहीं रही है। सर आप बताएं प्लीज, मोहसिन हैदर साहब, क्या हो रहा है? क्योंकि मेरी सोच ऐसी है राजीव जी, जी बोलिए सर, बोलिए। ये जानबूझकर किया गया है 10% के ऊपर, ताकि इलेक्शन किसी ना किसी तरह आगे बढ़ाया जाए। ये प्री प्लानिंग के साथ किया गया है। भले सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी की बात कही गई थी, उससे पहले इलेक्शन कराया जाए, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का कहना था कि इलेक्शन मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, पहले से बोलते आ रहे थे। तो ये मुझे लगता है जानबूझकर इस तरह की धांधली की गई ताकि ये इलेक्शन किसी न किसी तरह आगे बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ मुंबई महानगर पालिका में भले एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया हो, करीब करीब 4 साल होने आए जी, फरवरी में 4 साल हो जाएंगे, जनवरी में। जी, तो भले एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया हो, लेकिन पूरी सत्ता जो है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में है। पूरे मुंबई महानगर पालिका के किसी जमाने में आयुक्त का जो रुतबा हुआ करता था, आप जाके देखिए क्या रुतबा आयुक्त का है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि इलेक्शन फौरन ये कराना चाहता हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर, क्योंकि इतना बड़ा धांधली, मोर देन 10%, यस, इतनी बड़ी धांधली ये प्री प्लान करके किया हुआ, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है, ताकि किसी न किसी तरह और जाकर इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, वहां जाकर तारीख लिया जाए। एक मकसद के साथ मुझे लगता है ये काम किया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मुंबई महानगर पालिका में जो पिछले 4 सालों से जो धांधली चल रही है, जो कारोबार चल रहा है, जो लूट मचा के रखा हुआ है, वो लूट को कहीं रुकने नहीं देना चाहते हैं। अरबों करोड़ों रुपए का जो है जमीनें अपने अपने दोस्तों को बांटने का काम, फंड जो है अपने अपने पार्टियों में बांटने का काम। आप हैरान हो जाओगे, आज मुंबई महानगर पालिका की हालत देखोगे, ऐसा लगता नहीं कि मुंबई महानगर पालिका वो पालिका रही हो पहले किसी जमाने में थी। आज आप एक तरफ अभी जो है बिहार में पैसा बांटने की बात कर रहे हो राजू जी, जी सुन रहा हूं, जी बोलिए। मुंबई महानगर पालिका का 75,000 कोटी का बजट है करीब करीब। जी, 3 सालों से 2023, 24, 24, 25, 25, 26 एक बजट हेड बना के रखा है सिविक, बेसिक सिविक कम्युनिटीज, जो अनफोर्सिन पैसा है। आप बीजेपी और उससे सहयोगी दिल से कहिए, व्हाइट पेपर निकाल के हमें बता दीजिए 3 साल आपने क्या खर्च किया है। पहला साल मुंबई महानगर पालिका के उस बजट के हेड से 23-24 में 1250 करोड़, 24-25 में 1050 करोड़, 25-26 में 1050 करोड़ सिर्फ इलेक्शन फंड के तहत दिया गया है। एक भी विरोधी पक्ष, ना तो कांग्रेस, ना तो शिवसेना उबाठा, ना तो एनसीपी शरद पवार जी के पक्ष को एक पैसा नहीं दिया गया है। पूरी तरह से पिछले असेंबली इलेक्शन से पहले 1 साल हुआ इलेक्शन, 2 साल, एक एक विधायक ने मुंबई महानगर पालिका के 40-40, 50-50 करोड़ रुपए एक एक महीने में खर्च किया है। आज बताइए मुझे, आज जो ब्यूटिफिकेशन के नाम पर हम विधायकों ने कॉर्पोरेशन का पैसा लेकर खर्च किया है, मुंबई महानगर पालिका के अफसर कहते हैं कि ये विधायकों ने कभी महाराष्ट्र स्टेट में जो पैसा नहीं देखा वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखा है। अभी जो पक्ष बदल के, अगर मैं पक्ष बदल के उनकी पार्टी में चले जाऊं तो फौरन दूसरे दिन मेरे नाम से फंड आ जाता है। ये तमाम फंड, ये बेईमानी, ये इलेक्शन का फंड है। अभी भी जो अपने अपने जो नगर सेवक पहले 4 साल या 10-20 साल पहले रहा हो, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ का फंड उनको दिया जाता है। लेकिन जो पिछले 4 साल पहले इलेक्शन, ये 4 साल पहले जो नगर सेवक विरोधी पक्ष का रहा हो, एक पैसा उनको दिया नहीं जाता, ना आमदार को दिया जाता है। यहाँ तो राज्यसभा के खासदार भी 20-20 करोड़ रुपए एक साल लिया जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका का मुझे बताइए, मिलिंद देवरा जी का क्या ताल्लुकात मुंबई कॉर्पोरेशन से? 20 करोड़ रुपए मिलिंद देवरा जी 1 साल ले गए। इसी तरह हर राज्यसभा जितने एमपी हैं इनके सत्ता पक्ष के, वो कॉर्पोरेशन को लूटने में लगे हुए। तो मुझे लगता नहीं कि नेक नियत है इनका कि मुंबई महानगर पालिका में इलेक्शन कराए। जमीनें जो है अपने अपने दोस्तों को दिया जा रहा है। ऐसे 500 हजार कॉन्ट्रैक्ट, 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है। हम लोग मुंबई कांग्रेस की तरफ से, हम और वर्षा आपको पता होगा, हर 15 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुंबई के जो है इस तरह के जो लूट मची हुई है। तो मुझे लगता है इलेक्शन रोल जानबूझकर किसी न किसी तरह इलेक्शन को कुछ न कुछ वक्त आगे बढ़ाने के लिए ये प्री प्लानिंग के साथ किया गया। आज ही इतने बड़ी धांधली इलेक्शन रोल में आज ही मुझे लगता नहीं कि ये इत्तेफाक से हुआ होगा। आज ही अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आज ही अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है मिथि रिवर का सफाई।
मिठी रिवर का सफाई करते करते मिठी Also रिवर अडानी। और भी गंदगी फैला हुआ है, मगर साहब अभी एक अडानी नहीं है, अडानी- ऐसे बहुत है, बहुत। मुंबई कॉर्पोरेशन मैं में आज- कॉन्ट्रैक्टर 6 महीना 4 महीना पहले कॉन्ट्रैक्टर आया हुआ है, 500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पीएपी के नाम पर, देखिए प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन के नाम पर 750 कोटी एक हमारे वहाँ एक सीटीएस में दिया गया है, जू पे एक ईंट नहीं रखा गया है। जंगल में वहां पर मलाड में, वहां पर जो पहाड़ के ऊपर 750 करोड़ दिया गया, जबकि इंसान जा ही नहीं सकता जानवरों के बीच में। इस तरह के कॉर्पोरेशन में लूट मचा के रखा हुआ है। ये नहीं कराएंगे इलेक्शन, ये इसी तरह कुछ ना कुछ बहाना करके मगर सुप्रीम मुझे- कोर्ट जाएंगे, मुझे फिर बताइए, वापस ले जाएंगे। आप ये मैं BMC आपको दावे के आप साथ कहना BMC चाहता में हूं। थे, आप बीएमसी में अब भी है। आपने आवाज उठाया था मिठी रिवर जिस प्रकार से क्लेंजिंग, एक एमएमआरडे का 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बीकेसी क्षेत्र में और उसके बीएमसी क्षेत्र में और 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, मगर ये सब छोड़ के अडानी को 1700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया at one go, complete cleaning. Now, what is this? Why? When is the Congress? Because ये वक्त है आपको आवाज उठाने का। मोहसिन हैदर साहब मसला यही है, मुंबई महानगर पालिका लोकल बॉडी ना होने की वजह से कुछ लोगों को लगता है क्या होता है, लेकिन हकीकत में जाके देखिए मुंबई महानगर पालिका 4 साल से इलेक्शन नहीं है। इन मुद्दों को लोग नगर सेवक सभागृह में उठाते हैं, प्रभाग समिति में उठाते हैं, अलग अलग कमेटियों में उठाते हैं। आज मुंबई कॉर्पोरेशन की हालत देखिए आप, एक आधा म्युनिसिपल हॉस्पिटल में जाके देखिए आप। एक तरफ आप अनाउंस करते हैं कि हर दवा मिलेगी, प्रिस्क्रिप्शन लेस पॉलिसी हम लाएंगे। आदरणीय शिंदे साहब ने क्या कहा था, सीएम थे, प्रिस्क्रिप्शन प्लस हम लाएंगे, कोई चिट्ठी हम बांटेंगे नहीं, अस्पताल तक दवाई मिलेगी, सिरिंज तक नहीं मिलती, सिरिंज बाहर से लाने के लिए बोला जाता है। ये जो धांधली है, ये धांधली ऐसा लगता है कि कोई पुरसाने हाल नहीं, जिसको जितना मांगता लूट लो। मुंबई महानगर पालिका के, मुंबई करो के जो खून पसीना के जो पैसा है उसका लूट मचा के रखा हुआ, उसका कोई ऑडिट नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये 2 साल पहले आमदार में 40-50 करोड़ इलेक्शन से पहले लिया गया था, वो अभी जो पैसे बट रहे हैं 2-2 करोड़ जो इलेक्शन लड़ना चाहता हो, मैं आपको बता दूं, मैं खुद मेरे विभाग में आपको पता है कि सिर्फ 25-26 साल से तो हम ही लोग जी। हैं। उससे पहले एक नगर सेवक हुआ करते थे, उनके नाम पर भी 2 करोड़ रुपए आ गया विभाग में। क्या मतलब बात जो उनके पक्ष में इलेक्शन लड़ना चाहते हो, इसके इलेक्शन फंड नहीं है तो क्या कहोगे? जो आप ऑडिट कीजिए, जो 35-35 40-40 करोड़ आमदार ने पैसा लिया है, हमने पत्र लिखा है, ऐसे ऐसे जगह से पैसा बिल पास किया है जहां काम ही नहीं हुआ है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, ऊपर से नीचे तक कोई आवाज उठाता तो उसके तो आपके जो पीछे जो है, मुताबिक मोहसिन हैदर साहब, तो आपके मुताबिक ये जान करके बिल्कुल, BMC बिल्कुल, के चुनाव को 100% डिले किया जा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में एक तो ब्यूरोक्रेट्स का राज है और ब्यूरोक्रेट जिनको रिपोर्ट करते हैं उनका राज है। सीधी बात है। साहब ब्यूरोक्रेट्स का बिल्कुल नहीं है। आज मुंबई महानगर पालिका के आप इतने साल रहे हो, आयुक्त का रुतबा देखिए क्या हुआ करता, आज जाके देखिए जी, मालूम है आयुक्त सर। महोदय का रुतबा क्या है। जब मालूम है म्युनिसिपल कमिश्नर का ऐसा रुतबा गिर जाएगा तो नीचे ऑफिसर डरा हुआ है, खौफ में है, उनको ऐसा लगता है कि आज नहीं कल हम पकड़े नहीं जाए, क्योंकि जो गलत गलत काम उनसे कराए जा रहे हैं। आज कोई एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ नाम से है, सेक्शन 5 बीएमसी एक्ट को अमेंडमेंट करके आयुक्त को जो है एडमिनिस्ट्रेटर कर बिठाया रखा है, जी। लेकिन आयुक्त का कुछ नहीं है। आज फंड मुझे बताइए, मुंबई महानगर पालिका जो मैं फंड बताया, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जीआर निकलता है कि जो भी फंड है वो गार्डियन मिनिस्टर देगा। गार्डियन मिनिस्टर मुंबई कॉर्पोरेशन में जाकर एक दफ्तर कब्जा कर लेता है। स्टेट गवर्नमेंट के गार्डियन मिनिस्टर का क्या मतलब मुंबई महानगर पालिका से? मुंबई महानगर पालिका किस कायदे में लिखा हुआ है? बीएमसी एक्ट में कहीं लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर बैठने के बाद फंड जो है जो गार्डियन मिनिस्टर बताएगा उसी को दिया जाएगा? तो गार्डियन मिनिस्टर जिस पार्टी का उन्हीं को देंगे, विरोधी पक्ष को एक पैसा नहीं देंगे। तो ये क्या हो रहा है? जरा आप जैसे, मुझे लगता है कि आप जैसे लोग आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई आवाज नहीं, हम ज्यादा आवाज उठाओगे तो हमारे पे केसेस दर्ज किया जाता है, केस लगाया जाता है हमारे ऊपर। तो इस तरह का एक डेमोक्रेसी तो मुझे एडवोकेट सुशील व्यास जी के पास जाने दीजिए सर। मुंबई कॉर्पोरेशन में चल रहा है, मैं जी। बताना चाहूंगा आपसे। राइट, सो सुशील व्यास जी, इज दिस डिलिबरेट सर कि बीएमसी के पोल जो है वो जान करके पोस्टपोन किए जा रहे हैं? नंबर 1, बीएलओ जो सुसाइड कर रहे हैं, क्या सरकार का कहना है कि एसआईआर और सुसाइड का कोई संबंध नहीं है? और नंबर 3, जिस प्रकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कहीं 10,000, कहीं 1,500, कहीं 2,500, कहीं कुछ और, वो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सर, इज डू थिंक दैट इज फेयर? अब आप बोले सर। सुशील व्यास जी प्लीज गो अहेड। सर अनम्यूट कर लीजिए सर अपने फोन को, आपने म्यूट पे रखा हुआ है, प्लीज।
आपने तीन जी। बातें तीन अलग संदर्भ की पूछी हैं। जी बोलिए ना सर, प्लीज प्लीज गो मैं अहेड सर। सारे साथियों को सुन रहा था। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं आज जो कह रहा हूं, मैं मेरी दल शिवसेना शिंदे जी के नेतृत्व वाली है उसके बिहाफ पे जो कहूंगा वो बात कहूंगा। मैं आज कोई एनडीए का प्रवक्ता के रूप में आपके सामने नहीं बैठा हूं, जी क्योंकि इसमें से सारी प्रश्न जो कुछ कुछ है वो एनडीए के संदर्भित भी है। जी अब बीएमसी का चुनाव निश्चिंत रहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 31 जनवरी 2026 के पहले संपन्न करवाना है, तो वो हो जाएगा। अगर आदरणीय उच्चतम न्यायालय उसको आगे नहीं बढ़ाती है तो, और सारी तैयारियां चल रही है। संभवतः लगभग सारी तैयारी स्थानीय स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर हो चुकी है, और यहाँ तक भी आरक्षण भी हो चुके हैं वार्डों के, जहां जहां आरक्षण करने चाहिए। चुनाव की सारी तैयारी जिस तरह से होती है, एक बार ये 2 दिसंबर के ये जो लोकल बॉडीज के अलग पूरे महाराष्ट्र भर के जो चुनाव हो जाएंगे संपन्न, तो उसके बाद 29 महानगर पालिका के जो चुनाव हैं वो भी 31 जनवरी 2026 के पहले बिल्कुल संपन्न करा दी जाएंगे। अब रही बात बीएलओ की। अब बीएलओ को, जैसे हमारी बहन कह रही थी कि 1200 वोट ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, और 1200 फॉर्म उनको बांटना है और एन्यूमरेशन फॉर्म वापस भरवा के लेना है 4 तारीख के पहले। इसके अलावा कोई काम नहीं आगे, तो कोई स्ट्रेस वाला काम है नहीं। और जहां मैं इलेक्शन कमीशन की साइट अभी आपसे इनकी बातें सुनते सुनते देख रहा था, करीब 99% से ज्यादा फॉर्म सबमिट हो गए, और 46% के करीब फॉर्म जो है आज शाम को 6 बजे तक वापस आ भी गए भर के। तो ये एक प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया को अभी समय है, और उसमें अगर उस प्रक्रिया को 1200 लोगों तक अगर एक ऑफिसर नहीं पहुंच पाता, तो उसमें कहीं न कहीं मान लो प्रशासनिक कोई चीजें हैं, तो वो वहां का स्तर, उस प्रदेश का क्या ढांचा है प्रशासनिक, वो बता सकता है। महाराष्ट्र में तो इस समय एसआईआर हो नहीं रहा, तो अगर महाराष्ट्र में होता तो निश्चित रूप से मैं उसकी डिटेल में आपको चर्चा करता। लेकिन अभी आप जो मुझसे पूछ रहे हैं वो इस समय उत्तर प्रदेश, केरला, राजस्थान, उन राज्यों में हो रहा जहां गुजरात, मेरी पार्टी गुजरात, मेरी पार्टी का कोई वहां पे उस समय को सक्रियता है नहीं, इसलिए मैं उसमें बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। लेकिन इतना जरूर है कि मैं इलेक्शन कमीशन की साइट को आपकी बातें सुनते सुनते देख रहा था, 99% समथिंग वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, और 46 पॉइंट समथिंग फॉर्म वापस आ भी गए, और अभी भी तकरीबन 10 दिन बाकी है, और 10 दिन में 1200 लोगों का एक ब्लॉक में फॉर्म वापस आना कोई, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात होगी। फिर इतनी भी बात है तो हर पार्टी ने अपना बीएलए अपॉइंट किया है, ब्लॉक लेवल एजेंट, तो उनकी भी तो कोई ड्यूटी बनती है ना, कि सारी चीजें टीवी पे आके हम लोग इलेक्शन कमीशन को खाली गालियां देते रहेंगे। उनका बीएलए भी कोई अपना रिस्पॉन्सिबल होगा, या वो कुछ उत्तरदायी होगा। जैसे मैंने अभी बिहार का मैं देख रहा था, बिहार के आज ही शाम को 6 बजे के बाद उन्होंने डाला है इलेक्शन कमीशन, कहा है कि हमने सारे चुनाव में 243 के 243 विधानसभा क्षेत्रों में हमने जो एक कंपलसरी जो होता है वीवीपीएटी का क्रॉस चेकिंग 7 दिन बाद रिजल्ट के, तो हमने किया, एक भी जगह मिसमैच नहीं हुआ, एक भी जगह मिसमैच नहीं हुआ। अभी लेटेस्ट 1 घंटे पहले उन्होंने अपलोड किया है। अब वो ये बताइए कि किस तरह से आप मतलब उनको अगर कटघरे में खड़ा करना चाहते हो तो कानूनी प्रक्रिया है। 14 तारीख को ये आया है रिजल्ट, 45 दिन का समय होता है अंडर सेक्शन 80 इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट टू फाइल इलेक्शन पिटीशन। अभी है 32 से 30 दिन, तैयारी कर लीजिए। जो जो गफलियां हुई है आपके नजर में, जो जो गैर कानूनी हरकतें हुई हैं, उसको अपना हाईकोर्ट में, वहां के स्थानीय हाईकोर्ट में जाकर चैलेंज कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। व्यास जी, नीलेश राणे जी ने मालवण में पुलिस और सभी अधिकारी को लेकर एक मालवण में एक जगह 25 लाख एक बीजेपी कैंडिडेट के, यानी वहां के मुख्य लीडर के घर से रिकवर किया, 25 लाख रुपया। नाउ यू आर अ पार्टनर ऑफ बीजेपी, ये क्या चल रहा है? क्या युति में इतना दरार हो गया कि एक दूसरे का पक्ष के लीडर्स के ऊपर रेड लगने लगा है? इलेक्शन, व्हाट इज दिस हैपनिंग? 25 लाख एकनाथ शिंदे जी गुट, यानी आपके गुट पकड़वा देते हैं। ये राष्ट्रीय हित में काम हो रहा है आजकल, युति नहीं है। मैंने नामिया जी इसीलिए शुरुआत में कहा, 2 साल में वाक्य मैंने शायद पहली बार बजाज जी ने मेरे मुंह से सुना होगा कि आई विल नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एनडीए टुडे, आई विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माय ओन पार्टी ओनली। तो ये जो आप जो चर्चा कर रहे हैं, वो हमारे दल के वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, नारायण राणे जी के सुपुत्र हैं, जो हमारे दल के विधायक हैं। वहां पे हम दुर्भाग्य से कुछ हमारे आपसी नहीं बन पाई समझ, तो इसलिए हम आमने सामने लड़ रहे हैं।
तो ये स्थानीय स्तर पर ये चीजें हुई और नीलेश राणे जी को जब पता चला कि इस तरह से कोई घटना है, पैसों का कुछ कारोबार होने जा रहा है, कुछ उसका वितरण होने जा रहा है, उन्होंने जाकर के शायद रेड हैंडेड रेड करवाने की वहां पे की। वो सारे डोमेन, पब्लिक डोमेन में सारे चैनल्स जो हमारे विशेषकर महाराष्ट्र के जितने भी लोकल चैनल हैं उन्होंने लाइव दिखाया है। आज नीलेश राणे जी जाकर के वहां निर्वाचन अधिकारी से भी भेंट की है और सारी चीज जब जनता के अदालत में सामने एकदम स्वच्छ पानी की तरह आ गई तो उसके बाद उस पर मैं क्या कहूँ। जो चीज है जनता ने देखा है, अपने आंख से देखा है। 25 लाख का वो जो झोला है उनके बेड पे पड़ा हुआ बेडरूम में, और नीलेश राणे जी ने इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि को और पुलिस ऑफिसर को ले जाके दिखाया, वो भी टीवी में दिख रहे। तो अब इसके बाद जनता को फैसला करना है कि क्या इस तरह की चीजों से चुनाव जीता जाएगा। तो आपका कहना है कि जब अमित शाह जी को जाके एकनाथ शिंदे जी मिले थे और वापस आके जो सब लोग कहते कि बहुत जबरदस्त पावरफुल डायलॉग बोले, अमी लड़नारे है, लड़नारे लोग है, रड़नारे लोग नहीं है, लड़नारे लोग है, रड़नारे लोग, तो साबित कर दिया एकनाथ शिंदे जी ने। फडणवीस जी हो, कोई भी हो, सबको एक्सपोज कर देंगे, चुनाव अपने बल पे लड़ेंगे। एकनाथ, हाउ डू यू सी दैट व्यास जी? नाम्बियार जी, सबसे पहले तो मैं तय आपको स्पष्ट कर दूं कि एकनाथ शिंदे जी ने अमित शाह से मुलाकात इस छोटी सी चीज के लिए नहीं की। हम एनडीए के घटक दल है और अन्य मुद्दों पे कुछ जो चीजें होती है उन मुद्दों पे जाकर राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठना पड़ता है। उस संदर्भ में हो गए कि छोटी मोटी शिकायतों को लेकर हमारा नेता जो शेर दिल इंसान है वो वहां नहीं जाएगा, और ये उसने पब्लिक डोमेन में कहा। अब दूसरी चीज आपने कहा, उन्होंने कहा मैं लड़ने वाला हूँ, रोने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे के शागिर्द लड़ने वाला ही हो सकता है, रोने वाला नहीं हो सकता है। बाला साहब ठाकरे का शागिर्द 20% राजनीति करता है, 80% समाज के बीच में रहकर उनके सुख और दुख आंसू पोंछने का काम करता है। वही शिंदे जी कर रहे हैं। इसलिए शिंदे जी ने कहा मैं लड़ना रहा है, मैं लड़ना रहा नहीं है। तो सर ये तो बता दें, ये तो बात हो गई व्यास साहब, ये जो 10,000 रुपए जो अकाउंट्स में दिए गए और इधर लाडली बहन बहना योजना में इवन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन, जैसा पूजा मिश्रा जी बता रही थी, बिहार में भी वही हुआ। कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद भी पैसे आते रहे, तकरीबन 7,500 रुपए चले गए। सर, यू आर एन एडवोकेट, डोंट यू थिंक द इलेक्शन कमीशन शुड हैव इंटरवीन्ड? दे शुड हैव सेड, हे लिसन, दिस इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कोड ऑफ कॉन्डक्ट, व्हाट आर यू डूइंग? व्यास साहब, Bajaj sir, with due respect, I am not representing election commission here. I am representing my party. If my party has done apart something, from I am the liable to answer. fact that you are representing your party, you are also an officer of the court. And Definitely. being an officer of the court, I Definitely. would expect If you something wrong to is tell taken us. place, please, election petition provision is there. Go and file. I see. You don't think anything wrong is taking place. Is that what you're saying? See, I was not there in Bihar that time, so how can I say what has happened there? What about Maharashtra? महाराष्ट्र में तो लाडली बहन ये लोग 4 महीने पहले अनाउंस हुई थी। 4 महीने पहले हमने इसको स्कीम को अनाउंस किया है इलेक्शन के। आई रिमेम्बर द डेट 26 जून। जी, राइट। इलेक्शन में अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हुए हैं। अजीत पवार जी ने अपना अंतरिम बजट पेश करते हुए ऑफिशियली उसको 450 करोड़ रुपया ईयर मार्क करके अनाउंस किया है। तो उसको बाकायदा उसको एक जन कल्याण की योजना जो हमारी बहनों को सशक्तिकरण के लिए उस समय हमारे नेता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में ये मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना करके अनाउंस हुआ और वो कभी बंद नहीं होगी। बजाज जी, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आई एम सेइंग, वो इतनी अच्छी जन कल्याण की योजना है, वो कभी बंद नहीं होगी। क्या बात है साहब, वंडरफुल। सो पूजा मिश्रा जी, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक के बीजेपी का प्रश्न है, क्योंकि मुझे याद है राजस्थान में कांग्रेस ने तकरीबन ऐसी ही एक स्कीम अनाउंस करी थी जो लास्ट उनकी गवर्नमेंट थी, एंड द इलेक्शन कमीशन हैड सेड नो, यू कांट डू इट राइट नाउ, कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने वाला है, उसके पहले आप ये नहीं कर सकते, इट वाज स्टॉप्ड। सो इज द केस इन अ कपल ऑफ अदर स्टेट्स, आई विल रिमेंबर दोस स्टेट्स। नाउ आई आस्क यू दिस, now the BJP has worked out a template, madam. बीजेपी का तो टेम्पलेट बन गया ना, अभी खाका बन गया। चुनाव के 2 महीना पहले इलेक्शन को, इलेक्टोरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अनाउंसमेंट के 3 महीना पहले, चलो आपने एक नई वेलफेयर स्कीम अनाउंस कर दी, 2 महीने पहले या 1 महीने पहले सबके जेब में पैसे आ गए, उसके बाद गुड मॉर्निंग, क्या कर लोगे आप बताइए पूजा मिश्रा जी। राजीव जी, मैंने शुरुआत में ही कहा आपको कि हम जो है लीगल सुझाना है, जिस तरीके से बिहार में हुआ उस तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लीगल ग्राउंड पे बहुत काम करते हैं और अभी भी हम लीगल ग्राउंड पे बहुत कार्य कर रहे हैं। इसीलिए जब एसआईआर की बात चली, एसआईआर में इतनी मुश्किलें आने के बावजूद भी
हम एसआईआर में बिल्कुल कोऑपरेट करते हुए हमारे बीएलएस काम कर रहे हैं। अभी जो है इससे पहले जो एनसीपी के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि वो एनडीए के लिए बात नहीं करेंगे, एनसीपी के लिए बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1200 फॉर्म देना, आप सही कह रहे हैं कि 99% जो है वो डाटा आपको शो कर रहा है कि फॉर्म बढ़ चुके हुए हैं और उनको वापस लेना कह रहे 46%, जो 64% है वो वापस भी लिए जा रहे हैं। तो फिर ठीक है, फिर इसमें तो स्ट्रेस नहीं है। फिर आप ऐसा कौन सा स्ट्रेस दे रहे हैं उनको इलेक्शन कमीशन को आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, तब तो और कंसर्निंग है। क्योंकि हमें तो लग रहा था कि ये टाइम ड्यूरेशन कम है, इसकी वजह से जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, पर आपकी बात से लग रहा है कि बात सही है, ये टाइम ड्यूरेशन इतना कम नहीं है, जब बांट ही चुके हैं उनको जाकर के वापस ही लेना है, तो फिर परेशानी कहाँ पे है। और वो इतना ले ही चुके हैं तो फिर परेशान उनको कैसे किया जा रहा है, उनसे ऐसा क्या करवाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हैं, ऐसा उनसे क्या करवाया जा रहा है कि उनका हार्ट फेल हो जा रहा है, ऐसा उनसे क्या करवाया जा रहा है कि वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। ये तो फिर मुझे लगता है कि और कंसर्निंग है। और पूरी जितनी पार्टियां हैं, मैं तो कहूंगी भाजपा से भी, एनसीपी से, एनडीए से भी, कि सब लोग चल करके इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कि भाई आप ऐसा क्या करवा रहे हैं उनसे, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। वो एक ही राज्य में नहीं, अलग अलग राज्यों में आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि जो वो बियर नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद में भी आपने कहा था कि इन्होंने कहा, हालांकि अभी आप लोग पालिका की बात कर रहे थे महाराष्ट्र की, इनका कि नहीं वहां पे विधायक है वो हमारे से नहीं बनती है। अगर हमारे या इंडिया ब्लॉक की कोई बात होती तो अभी अलग बात चल रही होती कि इनकी बनती नहीं, आपस में नहीं समझते हैं। इनके यहाँ पे चलता है ये सारी चीजें कि हाँ ये ठीक है, इस तरीके से लड़ रहे हैं या अभी आमने सामने लड़ेंगे। और उसके बाद में अभी जो बात चल रही थी कि सॉरी मैं क्वेश्चन बोल जा रही थी बिहार की जी, जहां तक बिहार का सवाल है, जहां तक बिहार का सवाल है और जहां तक के डीबीटी का सवाल है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सवाल है मैम, दिस इज गोइंग टू बी वेरी, इट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल टू फाइट। ये नहीं, ये तो बिल्कुल तय बात है कि समाजवादी पार्टी इस तरीके की कोई भी चीज उत्तर प्रदेश में नहीं होने देगी। हम लीगल ग्राउंड पे आगे जाएंगे और अभी भी हम एसआईआर पे काम कर रहे हैं। और हम अभी भी पैरेलली एट द सेम टाइम जब एसआईआर का फॉर्म जमा कर रहे हैं तो उसमें आने वाली परेशानियों के साथ में अगर कहीं किसी का नाम भी कटता है तो भी हमारे बीएलएस, हमारे पीडीए प्रहरीज हमने करे हुए हैं। हम लीगल ग्राउंड पे वर्क करते हुए आगे जाएंगे और आगे जाकर के प्रश्न भी पूछेंगे। और एक्चुअली मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है, समय हो रहा है। धर्मध्वज जो कल अयोध्या में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने, you have to see that a new era, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे नया एरा है और योगी मॉडल क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार आल्सो इज अडॉप्टिंग योगी मॉडल। किस प्रकार से आप देखते हो डॉक्टर पूजा? अगर आप धर्म ध्वज की बात करते हैं तो वो पताखा है। वो पताखा छोटी मंदिर हो, बड़ी मंदिर हो, जब भी कोई मंदिर हो जब वो कंप्लीट होती है तो उस पताखा को मंदिर के टॉप पे लगाया जाता है। दैट इज द सिंबॉलिक। अगर कोई दूर से देखता है मंदिर के ऊपर में पताखा लहर रही है, इसका मतलब है कि दैट टेम्पल इज कंप्लीट। वहां पे मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। आप जाकर के वहां पे दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर वो नहीं लगा इसका मतलब वो अंडर कंस्ट्रक्शन में। वो अलग बात है कि भाजपा ने इतना पॉलिटिसाइज कर दिया हुआ है अयोध्या में श्री राम मंदिर को कि वो जो है पहले प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अब जो है पताखा फैला रहे। मैं आपको गारंटी कहती हूँ कि 2027 के चुनाव से पहले ये फिर भी ऐसा इवेंट करना चाहेंगे जिस इवेंट में ये शो करना चाहेंगे नहीं भगवान श्री राम मंदिर की बात करेंगे। और जो योगी मॉडल की बात कर रहे हैं, योगी मॉडल अगर सही तरीके से चुनाव हो गया हो और 27 में अगर सही तरीके से चुनाव हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बुरी तरीके से गिरेगी। उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकार रही है। उत्तर प्रदेश की जनता की बड़ी खूबी मुझे बड़ी अच्छी लगती है उत्तर प्रदेश की जनता की कि आप कुछ भी बोलते रहिए। यहाँ पे प्रधानमंत्रियों को भी हरा दिया गया है। अगर आप उनके मुद्दे की बात नहीं करेंगे ग्राउंड पे आकर के तो फिर आप खूबसूरत बातें करते रहिए, वो आपको वोट करने वाले नहीं है जनता। लेकिन उनके वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए। अब और कंसर्निंग हो रखा हुआ है राजीव जी, प्रदीप जी, कि इतनी इजी से टास्क के लिए ये बीएलओ आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं, रेजिग्नेशन क्यों कर दे रहे हैं, ये और कंसर्निंग है। हमें लगता है इस पे और गहन चिंतन करते हुए इसके तहत तक जा करके इस पे एक जांच बैठनी चाहिए कि उनसे ऐसा क्या आदेश दे दिया जा रहा है उनको कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। इस हद तक जा रहे हैं, उनका हार्ट फेल हो जा रहा है। और एक बात बोली थी कि जो है जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बना उस पे पताखा फहराया गया। हमारे सांसद है अवधेश प्रसाद जी, उनको वहां पे निमंत्रण नहीं दिया गया। मतलब एक जो है रिलीजियस सेलिब्रेशन हो रहा था और वो वहां के सांसद हैं
और वहां की जनता ने उनको चुन करके पार्लियामेंट में भेजा हुआ है। और अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के मेंबर है, उसके तहत भी अगर आप प्रधानमंत्री हैं वहां पे गए हैं तो वहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आपको बुलाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बुलाया। और ऐसा नहीं कि ये पहला कोई ऐसा जो है रिलीजियस इवेंट हो रहा था जहां पे नहीं बुलाया गया। इससे पहले दीपोत्सव हुआ था, वहां पे भी नहीं बुलाया गया। उससे पहले भी दीपोत्सव हुआ था, वहां पे भी नहीं बुलाया गया। ये इनके यहाँ पे एक धर्रा ही चल रहा है कि ये कह रहे कि नहीं, हम तो जो है हमारा आधिपत्य है, यहाँ पे जनता की कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर आप वहां के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुला रहे, इसका मतलब आप जनता को नहीं वहां पे पार्टिसिपेट करने देना चाहते हैं। और अगर, और एक बात और मुझे नहीं समझ में आती कि ये भगवान श्री राम जी के मंदिर पे पताखा लहराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों किया? क्यों, लाल किला तो था नहीं, और ना ही जो है 15 अगस्त हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे था। यहाँ पे हमारे शंकराचार्य है ना धर्मगुरु, चारों शंकराचार्य को बुलाना चाहिए था, निमंत्रण देना चाहिए था। वो पताखा लहराते भगवान श्री राम जी के मंदिर पे। अच्छा लगता है पताखा लहराना, अच्छी बात है, हम सबको बहुत अच्छा लगा कि भगवान श्री राम जी का मंदिर बना, पताखा लहरा। बस भाजपा से ये उम्मीद नहीं होती है कि आप रिलीजन को इतना पॉलिटिसाइज कर दीजिए कि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव But is the temple complete, ma'am? हमारे शंकराचार्यों को ना बुलाइए। मैम, आई बिलीव द टेम्पल विल टेक एटलीस्ट 5 more years to complete. एटलीस्ट 5 साल और लगेंगे मंदिर को पूरा बनने में। लेकिन अभी आप 26 में 27 से पहले, जब चुनाव से जब पहले आप देखने जा रहे हैं, एक और क्रिएट कर लेंगे ये लोग। अब डबल जब प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं मूर्ति की, और जो है पताखा लहरा सकते हैं कंप्लीशन का, तो ये चुनाव से पहले जैसे तैयार रहिएगा। और पूरा जो है कवरेज होगा उसका भी कि ये देखिए हम राम मंदिर में क्या क्रिएट करके निकालेंगे, इसके लिए आप तैयार रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पूरा होगा अब पहले आपको लगा कि कंप्लीट हो गया, अब दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हो गई, फिर आपको लगे कि ये अब तो पताखा लहरा रहे हैं। अभी कुछ और फ्रैक्शन का छोड़ रखे होंगे। हम अब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कई सारे नियम होते हैं कि हम लोग उनको, भगवान जी को, मूर्ति को, जो मूर्ति होती है, मूर्ति को हम पहले चावल में डुबो के रखे रहते हैं, फिर हम हनी में डुबो के, वो चलता है प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि फिर आगे चल करके ऐसा कुछ और क्रिएट करेंगे कि अब हम ये जो है 24 घंटों का ये कार्य किया जाएगा और उसको भी पॉलिटिसाइज किया जाएगा। इस चीज से दुख होता है। बाकी अब जो है भगवान श्री राम जी का पताखा फहराया जा रहा था, सारे लोगों को बुलाते, विपक्ष को बुलाते, एलओपी को बुलाते, आप सब लोग को बुला करके, और जो है हमारे जो 4 शंकराचार्य उनको बुला करके पताखा फहरवाते। कहने का मतलब ये हुआ मैम, आपके जाने के पहले आप कह रही हैं कि अभी सिर्फ बालकांड पूरा हुआ है। अब बालकांड के बाद अरण्य कांड होगा, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड, और उसके बाद उत्तर कांड। मतलब वो उत्तर रामायण जो है वो पूरी होगी। एक एक कांड को पूर्ण करने के लिए इसी प्रकार अलग अलग पताका फैलाई जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ। Well, wonderful, really and truly, what a lovely idea. Thank you so much, ma'am, for joining us. So nice of you. Pooja Mishra ji, great pleasure as always talking to you. Let me go across to Mohsin Naidar साहब। Mohsin Naidar साहब, अब आप ये बताएं कि जहाँ तक के अभी हाल ही में जो एक माशाल्लाह एक बड़ी, अब आपसे उसके बारे में पहले भी बात करी थी, मैं दूसरी बात अब दोबारा आपसे कर रहा हूँ। अभी निजाम साहब थे यहाँ पे, वो बोल रहे थे कि आपने कंप्लेंट करी थी, आपने ये मुद्दा उठाया था कि आदरणीय सम्मानीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी जो है और बाकी सब लोग जो है वहां पे मलाड के आसपास जो डेमोलिशन हुई है, अरे भाई काय को हुई है? नंबर 1। नंबर 2, अगर वहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या पाए गए हैं वो कहाँ हैं? उनकी लिस्ट होगी, नाम होंगे उनके। और जितने लोगों के घर वहां पे डिमोलिश हुए हैं, तोड़ कार्रवाई जिनके पास हुई है, वो 70 से 80% तो हिंदू घर हैं। तो ये क्या है? मोहसिन नईदर साहब आप बताइए सर प्लीज। साहब, मलाड में नहीं, हमारे यहाँ पर मेरे विभाग जुहू गली में भी इसी तरह 80 शेड्यूल क्लास के लोगों को घर से बेघर कर दिया, जिनको पात्र होना चाहिए था, और एक डेवलपर ने प्लॉट ले लिया। ऐसे मुंबई शहर में एक तरह जो है जहां झोपड़े तोड़ना और घर कब्जा, प्लॉट कब्जा करना, ये सिलसिलेवार शुरू है जी। अब आप लोगों को कहीं ना कहीं बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये तमाम बातें कहकर लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। जहां पर बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, हुकूमत आपकी है, वहां पर पकड़िए और अपने अपने जो कार्रवाई उस पर होनी चाहिए विदेशियों के ऊपर कीजिए। लेकिन जहां पर इसी मुल्क के, इसी सूबे के, इसी राज्य के गौर गरीब लोग, कोई शेड्यूल क्लास है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, ऐसे लोगों को जो है आप बेघर करोगे और ये कहोगे कि रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। ठीक है, बांग्लादेशी है तो जो कार्रवाई कीजिए, रोहिंग्या तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन गरीब जनता, मलाड़ का ही नहीं, अंधेरी पश्चिम में मेरे जुहू गली में भी जो स्वीपर्स लोग थे, जो 40-50 साल से मुंबई महानगर पालिका में काम करते थे, उनको भी बेघर कर दिया गया। उनको भी कोई घर नहीं दिया, आज भी दर दर भटक रहे हैं। तो ये एक सिलसिलेवार
मुंबई की जमीनों पर नजर है। इसी तरह का कोई ना कोई बहाना कर कर लोगों को गुमराह कर कर जो कीमती जमीन है उसको हथियाने का काम, मैं एक फिर से कहना चाहता हूं कि अपने अपने मित्रों को देने का काम ये राज्य सरकार कर रही है और मुंबई महानगर पालिका सिर्फ उसमें एक तरह से कठपुतली का रोल किया जा रहा है यहाँ पर मुंबई मैं एक महानगर छोटी सी बात पालिका बोलना की चाहता तरफ हूँ। से। और ये एक- सिलसिला एक- शुरू एक- है, सर, गरीबों सर, पर सर, अन्याय सर। हो रहा है, और जब गरीबों पे अन्याय होता है तो किसी न किसी बांग्लादेशी और वो रोहिंग्या इस तरह के नाम लिया जाता है, असल में गरीबों पर अन्याय हो रहा है। मोहसिन साहब और सुशील व्यास साहब, कल क्या था? कल कॉन्स्टिट्यूशन डे था, संविधान दिवस था, और उसके एवज में एक जगह है मोतीलाल नगर, गोरेगांव में। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, मोतीलाल नगर करके जगह है। 1962 के करीब, 1962 के करीब वो बसाई गई थी। वहां पर कुछ क्या है कि रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, क्योंकि काफी पुरानी होगी ना जगह, माडा की जगह है, वहां पर लोग रहते हैं, देयर एक्चुअल ओनर्स ऑफ देयर हाउसेस, इट इज नॉट अ स्लम। अब उसमें क्या हुआ है सर कि माडा और अडानी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बीच में एक करार हो गया है, जिसमें जो लोग वहां पर रहते हैं उनसे पूछा ही नहीं जा रहा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। वी डिड दैट शो अगेन yesterday. They were probably not able to present their case properly in the Bombay High Court or Supreme Court, as a result of which they lost over there. However, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं मोहसिन नईम साहब, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद सुशील व्यास साहब के पास जाऊंगा, कि आपके तजुर्बे में कभी ऐसा हुआ है कि जिस जगह के रहीवासी हों उनसे बात भी ना की जाए और रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो जाए? ऐसा कभी हुआ है सर मोहसिन नईम साहब? बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ साहब। और मैं आपको बताता चलूं, इसी तरह से सिर्फ डेवलपरों को खुश करने के लिए नया नया कायदा लाया जा रहा है, यहां पे अडानी साहब हैं जी, क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम पर लाया जा रहा है। जी मैं आपको बताऊं राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आ आपको? रही है सर, आ रही है। 33 टन जो है डीसीआर में, 33 टन में 11.A लाया गया है। 11.A अमेंडमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बस एक जीआर लाना, उसमें कोई डिबेट नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब 11.A मतलब क्या है? अगर एक स्लम हो, 10,000 स्क्वायर फीट का कहीं स्लम हो, उसके करीब में कहीं सरकारी जमीन हो, मुंबई महानगर पालिका की जमीन हो, सरकार की जमीन हो, स्कूल का रिजर्वेशन हो, कोई भी रिजर्वेशन वहां पर हो, तो वो स्लम में शामिल किया जा सकता है। 25% के ऊपर अगर जगह हो तो, यानी 10,000 स्क्वायर फीट के ऊपर, 2,500 स्क्वायर फीट के ऊपर जमीन आजू बाजू में कहीं पर भी स्लम के, उसको सीओ एसआरए को पूरा राइट दिया गया है कि उसको स्लम में शामिल करो। ये कहां का कायदा, मुझे बताइए, कौन डिबेट करेगा इस पे? यानी अचानक जीआर निकालते हो, अचानक जो है डायरेक्शन, एमआरटीपी में जो है आप डायरेक्शन निकालते हो 37(1) के तहत, और जो है इंप्लीमेंट किया जाता है कुछ डेवलपरों को खुश करने के लिए, यानी स्लम के आजू बाजू में सरकारी की जमीन, महानगर पालिका की जमीन, कोई भी रिजर्वेशन, अस्पताल का रिजर्वेशन हो, स्कूल का रिजर्वेशन हो, वो स्लम में शामिल कर दोगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि जानबूझकर इलेक्शन को आगे बढ़ाने का मकसद यही है कि ये तमाम मुद्दा उपस्थित ना हो, इस पे डिबेट ना हो कॉर्पोरेशन में। जमीनें जो है मुंबई कॉर्पोरेशन के, आप जो बता रहे हो क्लस्टर डेवलपमेंट के जरिए, एक एक डेवलपमेंट के जरिए जिसकी जमीन हो, चाहे स्लम हो, नन स्लम, मैं जो नन स्लम की बात बता रहा हूं, नन स्लम की जमीनें भी स्लम में शामिल किया जा सकता है। जी, जी। इस तरह के कायदे लाए जा रहा है, और जो है मुंबई के पता नहीं अवाम खामोश है या अवाम को समझ में बात नहीं आ रही है, यहाँ पत्रकारों अपने फर्ज पूरी तरह से निभाकर अवाम तक आवाज नहीं पहुंचाया जा रहा है, पता नहीं क्या है। राजीव जी, मैं जानता हूं आज से 25-30 साल पहले आप है, प्रदीप जी हो, एक एक बारीक बारीक मुद्दे को आप जो है अवाम के सामने लाया जाता था और किस तरह डिबेट होती थी, लेकिन आज एकदम खामोश है, लोग डरे हुए हैं, एक खौफ है कि भाई मैं आवाज उठाऊं तो मेरे पीछे नहीं पड़ जाए। ऐसे माहौल मुंबई महानगर पालिका की है, तो पूरी जमीन है मुंबई महानगर पालिका, आपको बता दूं, मुंबई कॉर्पोरेशन की जमीन है क्रॉफर्ड मार्केट के करीब में जो जमीन, वो मुंबई में वर्ली में जो असफाल्ट, सीमेंट असफाल्ट की जमीन है, बेच दी है कॉर्पोरेशन ने, जमीनें बेचने का काम शुरू है, जिनको चाहिए जमीनें बेचने का। ऐसे मुंबई महानगर पालिका कैसे सर्वे होगी, मुझे बताइए। ये कालाबाजारी मुंबई महानगर पालिका में चल रहा है, तो जो बोरीवली जो अपने जो गोरेगांव में हुआ, आपके इस तरह स्क्रीन पे पूरे जो अभी मुंबई चल शहर में रहा चल रहा है, है, गोरेगांव का मुद्दा सामने आया है। मोहसिन साहब, जो अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा है, इस शो के बाद हम लोग वो भी दिखाएंगे कि कल वहां के लोग क्या कर रहे हैं। सब लोग आमरण अनशन तक के लिए तैयार हैं, दिसंबर में शुरू कर देंगे। द प्रॉब्लम इज नोबडी इज लिस्निंग टू देम, कोई सुन नहीं रहा है उनकी बात। प्रदीप जी प्लीज। मोहसिन साहब, आई वांट टू आस्क यू समथिंग अबाउट ये जो भारी तरह से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चल रहा है, असलम शेख वर्सेस अमित साटम जिस प्रकार से चल रहा है, मंगल जी को जान से मारने की धमकी, इज इट ट्रू? व्हाट इज द राइट साइड? क्या है, क्या इसमें सच्चाई क्या है?
साहब ये सब असली मुद्दा, जो मुद्दा आपको बता रहा हूं मैं, ये मुद्दों से नजर हटाने के लिए जब विपक्ष में थे, भाजपा की आवाज कितने बुलंद आवाज थी, आज जो धांधली हो रही, आवाज निकल नहीं रही है। इनको अपने तमाम काला बाजारी, जो मैं आपको फंड की बात बताया, 33,000 करोड़ फंड जो है सिर्फ 3 साल में, आपने 33,000 करोड़ का फंड सिर्फ सत्ता पक्ष को। आज मुंबई की हालत देखिए, अस्पताल की हालत देखिए, सड़क की हालत देखिए, मुंबई के गटर नालों की हालत देखिए, फुटपाथ की हालत देखिए, तो इसमें कोई सवाल ना करे। इसीलिए शॉर्टकट के जरिए जो है, ये खान मेयर नहीं बनना चाहिए, वो फलाना नहीं बनना चाहिए, ये तमाम चीजें मैंने आवाज उठाई थी तो मेरे खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया था। तो ये इस तरह का जो है लोगों को कहीं ना कहीं भटकाने का काम, कहीं ना कहीं असली मुद्दों से लोग हट जाए, लोग तकलीफ को भूलकर जो है फिजूल के मुद्दों पर लग जाए। ये एक ही मुद्दा बीजेपी लेकर चल रही है, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, सिर्फ यही मुद्दा है कि इसने धमकी दिया, इसने फलाना बोल दिया। अरे भाई किसने बोल क्या दिया, क्या धमकी बोल दी दिया? उन्होंने? मैं कहता हूँ क्या सिक्योरिटी के साथ चलते हो आप, आम आदमी नहीं हो। क्या असलम सिक्योरिटी के शेख साथ साहब चलते हो, आपको डर किस ने बात की? क्या आपसे डर असलम किस शेख बात की? साहब ने मुंबई के अमन खराब करने का काम आप कर रहे हो। क्या असलम ये फिजूल शेख का जी काम है ने क्या असलम शेख जी ने क्या मंगल प्रभात लोढ़ा जी को जान से मारने की धमकी दी थी? क्या उन्होंने कहा था कि उनके परिवार वालों को भी हम जान से मार देंगे? ऐसा कुछ आपके सामने आया है? और अगर आया है तो बोलिए। राजू जी बोलिए सर, मैं बता रहा हूँ, मैं बोलिए। बताना चाहता हूँ, असलम शेख साहब पिछले 4 साल से चार बार से जो है एमएलए रह चुके हैं, मेंबर ऑफ असेंबली रह चुके हैं। उससे पहले मुंबई महानगर पालिका में 2 बार नगर से रह चुके, मंत्री रह चुके हैं। तो किसी को लगता है असलम शेख इससे पहले कभी इस तरह की बातें की होगी, किसी पे जो है जान से मारने की धमकी वगैरह असलम शेख जैसा आदमी दिया होगा? कभी असलम शेख से इस तरह की बोली कभी सुनी होगी? 20-25-30 साल से जो है सियासत में। तो मैं सिर्फ दावे के साथ कहना चाहता हूं, सिर्फ असली मुद्दे को भटकाने के लिए आम आम नागरिक का जो मुद्दा है, आम आवाम जो त्रस्त है, परेशान है। पॉल्यूशन देखिए मुंबई में क्या, किस लेवल तक पॉल्यूशन क्या है। दिल्ली की बात करते थे, आज मुंबई के पॉल्यूशन की देखिए क्या है। ये तमाम बातों पर नजर हटाने के लिए आप बातें, उसने गाली दिया, इसने गाली दिया, उसने धमकी दी। भाई आपके साथ सिक्योरिटी है, 8-8 पुलिस, 8-8 सिक्योरिटी ऑफिसर, ये सब साथ में लेके घूमते हो। किसी ने बोल भी दिया तो कहां आप पर कोई हमला करने वाला हो? तो ये मुंबई की आवाम को भटकाने का काम है। और मैं समझता हूं मुंबई की आवाम समझ चुकी है, इनके तमाम खोखली बातों पे समझ चुकी है। मुंबई की आवाम अपने असली मुद्दों पर जो परेशानी झेल रही है मुंबई की आवाम, मैं बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, प्रदीप जी आप भी हो, राजीव जी हो, आज मुंबई कॉर्पोरेशन के एक अस्पताल में मुझे आईसीयू का बेड दिला दीजिए। एक किसी अस्पताल में आज अगर किसी को आईसीयू के बेड की जरूरत हो मुंबई महानगर पालिका, मैं चैलेंज करता हूं, मुंबई के 5 जो है मेडिकल कॉलेज में एक आईसीयू का बेड मुझे दिला दीजिए, एक एनआईसीयू का बेड मुझे दिला दिए इन्फेंट बेबी के लिए। कोई इस तरह की सुविधा नहीं है, लोग त्रस्त है, परेशान है। अस्पताल की हालत सुबह जाके देखिए। तो इस तरह की बातें, उसने मुझे गाली दिया, धमकी दिया, ये किया, ये सब बातें, ये अब मुंबई के में नहीं चलने वाला। राइट, सो लेट मी गो टू सुशील व्यास जी। ये तमाम चीजें मुंबई राइट, शहर में तो नहीं चलेगा, और कहीं चले नहीं चले, मैं कहना चाहता हूँ। तो मोहसिन हैदर साहब ने जो कहा, सुशील व्यास जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी मंत्री हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, वो ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड मैन। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनको, वो तो मंत्री हैं, सरकार में है सर उनको जैसे वंदे मातरम का जो मुद्दा है उसके ऊपर उनको क्या जरूरत पड़ गई अबू आसिम आजमी के घर पे जाने की? अरे भाई अगर अबू आसिम आजमी ने कुछ गलत किया है, मंत्री हैं वो, ही कैन ऑलवेज टेल द होम मिनिस्टर विच इज मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कि भाई उनको उठा करके लेके आ जाओ, अरेस्ट करो इनको। ये क्या है? नंबर 2, आदरणीय सामान्य अमित साटम साहब, वो भी बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे इलाके के हैं, और बाय द वे बहुत अच्छा काम करते हैं, ये भी आपको बता दूं, ही वर्क्स वेरी हार्ड, irrespective of whether the work actually gets done or not, he never says no। आज तक कभी ना नहीं करते वो किसी को। अमित साटम साहब को ये जरूरत क्या पड़ गई कहने की, किसी खान को मेयर नहीं बनने दूंगा। और असलम शेख के बारे में हम किसी पाकिस्तानी की बात सुनेंगे क्या? सर अब आप बताइए सुशील व्यास जी, क्या चल रहा है? ये पहले कभी बॉम्बे मुंबई में नहीं हुआ यार। व्हाट इज गोइंग ऑन सर, प्लीज अब आप बोलिए सर। बजाज जी, साधारणतः मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देता हूं, आप जानते हैं। लेकिन आज विशिष्ट परिस्थिति में मैंने पहले क्लियर किया, शिंदे सेना से संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे कहिए। जहां तक सवाल लोढ़ा जी का है, वो भी मेरे व्यक्तिगत मित्र है, मेरे साउथ मुंबई से लगातार चुन के आ रहे हैं, और असलम शेख जी के साथ मोहसिन भाई को पता नहीं, मैं 35 साल कांग्रेस में जिम्मेदार
पदों पे था, विधानसभा भी लड़ा हूं कांग्रेस, तो हमने उनके साथ भी काम किया है। दोनों ही अपनी अपनी तरह से जनता के बीच एक साख बना करके काम करने वाले नेता हैं। अब ये क्यों राजनीति में इस तरह की बातें आ रही हैं, कम से कम शिंदे सेना उसकी पार्टी नहीं है, इसलिए मैं उस पर जो हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। मैं एक वाक्य में कह रहा हूं, जो हो रहा है और क्योंकि हम तो विकास की राजनीति करते हैं, हमारा नेता तो चिल्ला चिल्ला के कहता है, मैं विकास की बात करता हूं, विकास को लेके जनता के बीच में जाता हूं और विकास के आधार पे हम शिवसेना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाई एक ही हमारा घोषित वाक्य है, बाकी जो हो रहा है मैं एक वाक्य में बजाज जी कह दूं, दुर्भाग्यपूर्ण। बट व्यास जी, एकनाथ शिंदे जी जब सीएम थे तब भी फार्मर्स लोन वेवर का इशू था, फार्मर्स लोन वेवर जो है वो, यस यस, तो अब भी वो इशू है। मगर आज इलेक्शन के बीच में आपने अनाउंस कर दिया, सरकार ने अनाउंस कर दिया, जिसमें शिंदे साहब भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, दे हैव 1 साल के लिए आपने कहा कोई भी फार्म लोन रिकवरी नहीं होगा, फार्म लोन रिकवरी। तो क्या ये उल्लंघन नहीं है इलेक्शन प्रोसेस का? आप पहले भी कर सकते थे, बाद भी कर सकते थे, इलेक्शन के बीच में लोकल बॉडीज के बीच में आप ऐसे डिसीजन निर्णय ले लेते कि 1 ईयर तक, और करना तो पूरा कर सकते थे, मगर 1 साल के लिए आप रोक के रखे रिकवरी प्रोसेस। व्यास जी, नाम्बियार जी, आप तो वकालत करते हैं, आप जानते हैं इंटरिम रिलीफ किसको कहते हैं? द पोस्टपोनमेंट ऑफ रिकवरी फॉर 1 ईयर। वी आर नॉट सेइंग वी विल नॉट रिकवर एट ऑल, नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हो वहां पे भी चुनाव नहीं है, ये जिला परिषद के और ग्राम पंचायतों के चुनाव अभी घोषणा नहीं हुई है। ये नगर परिषद और नगर पालिकाओं की चुनाव होती है, जहाँ किसान नहीं होते, किसान होते हैं गाँव में। जहाँ ग्राम पंचायत और जिला परिषद के चुनाव अभी घोषणा होना बाकी है। तो एज ए उप मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई उन्होंने घोषणा की है और कानून के बाहर नहीं की होगी, और अगर कानून के बाहर की है तो लागू नहीं होगी, स्पष्ट बात है। अगर चुनाव के जाकर के आपको उत्साह के अंदर अगर हमारे नेता ने भी कोई अगर ऐसी बात कह दी है जो कानून की धारा में नहीं बैठती तो नहीं लागू होगी। बट ही इज नॉट हैप्पी, बाय द वे। I can say this from personal experience. Mr. Eknath Shinde is not happy. Why is he not happy? I'll tell you why. Because he's a farmer himself. क्या है कि वो खुद किसान है और ये पॉलिटिक्स से ऊपर है। मोहसिन हैदर साहब सुनने वाली बात है। सुशील व्यास जी आप भी सुने। ये एकनाथ शिंदे साहब इससे खुश नहीं है, क्योंकि सर आपने रिलीफ दे दिया, चलो 1 साल तक रिकवरी नहीं होगी। अरे यार अभी का मैं क्या करूं? जो रेत मेरे खेत में आ गई है, मेरा खेत जो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, मेरे ट्रैक्टर की ऐसी की तैसी हो गई है, मेरा जो पंप जो है इलेक्ट्रिसिटी का, जो पंप जो सिर्फ बिजली पे चलता है वो काम नहीं कर रहा, उसका मैं क्या करूं? प्रॉब्लम है सर। जो 31,000 करोड़ रुपए की बात हुई थी उसमें से अभी तक 6,500 करोड़ जो है अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बाकी कब होगा? सर फॉरगेट इलेक्शंस कम एंड गो, आई डोंट केयर अबाउट इलेक्शंस। ऑल आई एम सेइंग इज इफ देयर आर नो फार्मर्स, सुशील व्यास जी, हियर आई स्टैंड टोटली विद एकनाथ शिंदे साहब। इफ देयर आर नो फार्मर्स, if the farmer is troubled, we are all dead, sir. You have to go out there. अगर मैं कहता हूं आचार संहिता का उल्लंघन होता भी है तो करिए सर, किसानों में पैसे बांटिए प्लीज। व्यास साहब, मैंने बजाज जी वही कहा, मेरे नेता ने अनाउंस किया तो बड़े शेर दिल इंसान है, उन्होंने अनाउंस किया है और उन्होंने अपने गरीब किसान भाइयों के हित में जाकर के कोई बात कही है। अगर वो लगता है कानून के दायरे में नहीं है तो चैलेंज हो जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया, असामयिक जो बरसात आकर के जो फसलों को नुकसान हुआ, वो जिस तरह से शिंदे साहब खुद खेतों में गए, किसानों के पास गए और हमारे तमाम जितने भी मंत्री शिवसेना के हैं उन्होंने उनको कहा कि दशहरे के मेले में कोई नहीं आएगा, सब अपने अपने इलाके में जाके काम कर। आपने देखा दशहरे का मेला आजाद मैदान से शिफ्ट करके हम वो NSC गोरेगांव में एक छोटी सी जगह पे लेके चले गए और यही था कि आप अपने अपने जिले में जाएं, किसानों की मदद करें, किसानों के बीच में उनके सुख दुख में खड़े रहें और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी है कि हर किसान के यहाँ जाके पंचनामा करें और ये बताएं कितना नुकसान हुआ, उसकी जो एक तरीका है प्रशासनिक तरीका पंचनामे का, वो उसको पूरा कराएं। ये शिंदे साहब ने अपने शागिर्दों से कहा और उस पर हम लोग लग रहे हैं। अब वो शिंदे साहब एक जनता से जुड़े हुए नेता हैं, जैसे आपने जिक्र किया, जितना उनके संभव है। हाँ, मैं एक उनका पार्टी का वफादार साथी हूं, इसलिए मैं चाहता हूं अगर ये घटना पहले हुई होती जब वो मुख्यमंत्री होते तो शायद बजाज साहब को ये कहने का मौका नहीं मिलता जो आज एक मीठी शिकायत कह रहे हैं। I don't disagree. I agree. But मोहसिन हैदर साहब, are you going to oppose this because आप चुनाव से हार जाएंगे? ये जो बीच में घोषणा है फार्म रिकवरी प्रोसेस को 1 साल तक रोकना, लोकल बॉडीज अभी इलेक्शन जस्ट 1 वीक्स टाइम एंड सच एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। 1 साल इज अ बिग रिलीफ। 1 साल तक लोन रिकवरी नहीं होगा, लोन भरना नहीं होगा उनको, तो इट्स अ बिग रिलीफ। आप हार जाओगे जिस प्रकार से आप विरोध किया तो भी हार जाओगे, नहीं किया तो भी हार जाओगे।
जी साहब, ये किसान जानते हैं कि उनकी हालत क्या है। ये टेम्पररी रिलीफ से कुछ होना नहीं है। जो परेशानी वो झेल रहे हैं उसको परमानेंट रिलीफ देनी पड़ेगी। जो हालात से गुजर रहे हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो है इन चीज़ों से मुझे लगता नहीं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका विरोध तो कोई नहीं करेगा। किसान की हालत देखिए, किस तरह किसान अपनी जिंदगी जी, बिल्कुल। गुजर बसर कर रहा है। तो ऐसे में जो है उनको जितना परमानेंट जो है, हमारा कहना है कि परमानेंट जो है सॉल्यूशन निकालिए, परमानेंट उनकी तकलीफ को, परेशानी को दूर हटाइए। तो ये टेम्पररी मोहसिन, रिलीफ से I काम agree नहीं with you. चलेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। दुरुस्त बात। सर एक छोटी सी चीज है, मैं आप दोनों के सामने रखना चाहता हूँ। आप कांग्रेस के हैं, वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, किसी कारणवश उनको जाना पड़ा। सब दोनों के दोनों जो हैं, आप भी मुरली देवरा जी को अपना नेता मानते थे, व्यास जी भी मानते हैं, मेरे तो खैर बड़े अच्छे दोस्त थे। मैं तो आज भी मानता हूँ। So he was a very, very great friend of mine, very dear friend of mine, Murli Dura Sahab. And the one person who had a huge hand in a lot of things, including the fact that he introduced me properly, reintroduced me properly to Sonia ji. सोनिया गांधी जी के साथ मुझे दोबारा जो जिन्होंने मिलाया वो मुरली देवरा जी हैं। और सबसे पहला इंटरव्यू सोनिया गांधी जी ने प्रेसिडेंट कांग्रेस की बनने के पहले मुझको दिया। So I am really grateful to him. That was when I was the editor of the Daily. But, and where she complained about the fact how the Narasimha Rao government is not proceeding fast enough or seriously enough in the Rajiv Gandhi assassination case. That made headlines everywhere. So I am grateful to him. But all I am saying to both of you is this. Sir, मुंबई शहर में आज की तारीख में कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों की बात हुई है कि भैया आपका बजट इतना बड़ा है, उस बजट में से, जैसे खैरनार साहब कहा करते थे कि यार इसमें से अगर आप 25% बजट भी अच्छी तरह इस्तेमाल कर लो ना तो मुंबई की तुलना टोक्यो और लंदन से हो जाएगी, ऐसा उनका कहना था। अगर ऑनेस्टली किया जाए तो सर 2 बारिश होती हैं सड़क पे गड्ढा पड़ जाता है, 3 बारिश होती हैं सड़क पे इतनी बड़ी खाई बन जाती है, और उसके अलावा जैसे मैंने पिछली बार कहा था बहुत लोगों को, खार की जो इनर रोड्स हैं, आई टेक दैट रूट टू कम टू दिस ऑफिस, वहां पर अभी नई सीवेज लाइन लेकी गई है, इतना बड़ा चेंबर बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, अब उसको दोबारा खोद दिया सर उसको, उसके ऊपर कॉन्क्रीटाइज किया गया था रोड, एंड देयर आर 4 रोड्स, 4 रोड्स को अब दोबारा खोद दिया गया है। आई हैव बीन टोल्ड क्योंकि द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन मार्च 31, उसके पहले पूरा बजट खत्म करना है। तो मेरा यह कहना है सर, सभी पार्टियों को इकट्ठा मिलकर के, आपको लगता नहीं है मोहसिन हैदर साहब कि पूरी की पूरी मुंबई शहर का जो हित है उसके बारे में बात करें और बोलें ये कॉन्ट्रैक्टर माफिया जो है इनके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। मोहसिन हैदर साहब पहले आप, फिर सुशील व्यास जी। सर मैं इसका जवाब दूंगा, और शायद मेरी बैटरी भी खत्म हो रही है मोबाइल की। कोई बात नहीं, बोलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, अब जो रूल करता है उनकी जिम्मेदारी होती है, पूरे पार्टी एक तरफ तो आएगी नहीं। अब कोई एसओपी है ही नहीं। ऐसा लगता है कि मुंबई के जो है खून पसीने की कमाई मुंबई करो की जो है टैक्स के जरिए जो आता है उसको खर्च किस तरह किया जाए, उसी की होड़ में लगे हुए हैं। सड़क की हालत देखिए, एसओपी नहीं, कैसे सड़क बना जाता, आज बनता कल टूटता, कल बनता परसों टूटता है। कोई प्लानिंग मुंबई कॉर्पोरेशन की नहीं। मैं ये देता हूँ जो सत्ता पक्ष के उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक अच्छा प्रशासन होना चाहिए। आज न प्रशासक अच्छा है न सत्ता है 4 सालों से, और इस तरह के एक माहौल मुंबई कॉर्पोरेशन में पहले से भी था ही, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। आज और जो है बिगड़ते गए मुंबई की हालत, सड़क की हालत ही नहीं, हर चीज की हालत, फुटपाथ हो, सड़क हो, किसी की हालत ये दिन ब दिन खस्ता होते जा रहा है। और इस पे कोई आवाम जब तक सामने नहीं आएगी, आवाम इसको प्रायोरिटी को नहीं समझेगी, जब तक आवाम प्रायोरिटी को नहीं समझेगी, जब तक आवाम को समझ में, आवाम सवाल नहीं करे कि हमें ये सब खान कौन बनता है कि वो फलाना कौन बनता है, वो छोड़कर मुंबई की सड़कों के बारे में बात कीजिए, मुंबई के जो है फुटपाथ के बारे में बात कीजिए, मुंबई के जो है नाले सफाई के बारे में बात कीजिए, मुंबई के अस्पतालों के बारे में बात कीजिए। जब तक आवाम सवाल नहीं करेगी तो इस तरह के मुद्दे कि उसने जान से मारने की धमकी दिया, कि उसने खान मेयर नहीं बनना चाहिए, वो नजरुल इस्लाम आपके दरवाजे पे आ जाएगा, ये तमाम बकवास किया जाएगा। Right, so let me go to one final word from तो मैं Sushil राजू Vyas जी इस पे फिर मैं नेक्स्ट टाइम भी आप जब बुलाए मैं बहस करूंगा। जी। और मुंबई कॉर्पोरेशन के सिलसिले में व्यास जी आप बताएं सर, ऑल पार्टीज मस्ट गेट टुगेदर। नया नया सियासत में आपके जरिए से बहुत ही
इस तरह के डिबेट में हमने पार्टिसिपेट किया और मुंबई शहर में जी। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, प्रदीप नंबियार जी भी एक मेरी पहचान भी आपके माध्यम से बना है, तो इसलिए मैं जब भी आप बोलोगे तो मैं इस मसले पे आना चाहूंगा, लेकिन मेरी बैटरी जो है मोबाइल की अभी खत्म हो जाएगी, तो मैं अगर आप इजाजत दो तो मैं इजाजत लेना चाहता हूँ आपसे। let me go to Vyas साहब. Thank you so much, Mohsin Haider साहब. Vyas साहब, don't you think all parties should come together on this? लगता नहीं है आपको? मुंबई शहर के मुद्दे पर सभी मैं पार्टी को सही है, साथ आना शहर है तो हम हैं, हम तो ये तो मानते हैं शहर की व्यापक हित में हम लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति को भूल के इकट्ठा रहना चाहिए, तो मैं भी मानता हूँ इस बात को, मैं कहा नहीं सहमत करता हूँ, बिल्कुल जनता के हित में शहर के विकास के लिए जो कोई भी हो वहां पे हमको राजनीति को दरकिनार करके साथ में आना चाहिए। और देखिए बजाज साहब, नगर पालिका कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे हम लोग राजनीति करें। जिस तरह की राजनीति नगर पालिका के स्तर पे हो रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ तो वाटर मीटर गटर इसकी बात होनी चाहिए, सफाई कैसे हो, हम ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम लोग बिना कट अच्छी तरह से दे पाए, सड़कें कैसे हम अच्छी दे पाए, इनकी चर्चा होनी चाहिए। नगर पालिका और ये नगर परिषद नगर पंचायत को ये देश की राजनीति चर्चा करने की जगह नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से वो हो रही है। हमारे जैसे एक राजनीति के विद्यार्थी को वो मन से पसंद भी नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। राइट, थैंक यू। आई वांट टू आस्क गुलाब राव पाटिल का स्टेटमेंट को किस प्रकार से आप देखते हो? आप कहते हो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हमारे पास है, लक्ष्मी जी आपके पास आएंगे सवेरे सवेरे, सोना मत, तो लुभाना किस प्रकार? नामबिहार जी, चुनाव का जब माहौल होता है, जनता सामने होती है और माइक हमारे सामने होता है, हम एक नेता के रूप में क्या बोलते हैं हमको ही नहीं पता रहता है कि हम उस समय पूरा ब्रह्मांड उतार करके जनता के इस दरबार में लाके देने की इच्छा रखते हैं। लक्ष्मी जी दरवाजे पे न तो किसी के बैठती है, न लक्ष्मी जी उस तरह से आती है। वो एक मंत्री है, मैंने भी वो भाषण उनका टीवी पे सुना कि नगर विकास मंत्रालय हो, तो भाई नगर विकास मंत्रालय हो कोई मतलब थोड़ी के पैसे की वहां पर बरसात हो रही है। लेकिन ठीक है, भावनाओं के आवेश में एक नेता है, जनता सामने दिखती तालियां जब सुनते हैं तो वो क्या बोलते हैं, तो उनका जो डिसाइडेड भाषण होता है साइड में हो जाता है और भावना में वो कुछ भी बह जाते हैं। ठीक है, ये उसमें कोई गंभीरता नहीं है। Right, thank you so much, sir. Sushil Vyas ji, it's always a pleasure talking to you. So nice of you, sir. And thank you so much for joining us. Thank you. Namaskar, sir. धन्यवाद। So, Pradeep ji, Gautam Gambhir stays. BCCI, they have not come out with an official statement as yet. All they have said is that his contract is till 2027. So, एक साल और झेलना पड़ेगा उसको। कहने का मतलब ये हुआ। और हो सकता है कि 2026 वो में इतने बेशर्म हो गए कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। He wants to latch on. दुरुस्त बात है। That is the most important thing. A person takes responsibility and quits. At least offers to quit. वो नहीं, हम रहेंगे. It's collective responsibility. और जीत गया तो look how wonderful coach I am. And if it's lost, it's collective responsibility. दुरुस्त बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद बोल रहा है कि आपको याद नहीं है कि मैंने जो है चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, मैंने ये जितवाया वो जितवाया, ये बोलने की बात होती है यार। ये क्या मतलब है? मतलब आप खुद बोला करते थे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि कोई एक 6 की वजह से हम लोग थोड़ी जीते हैं क्या वर्ल्ड कप। मैं भी तो था वहाँ पे, दैट्स व्हाट ही सेज। उसके अलावा और पता नहीं कितनी चीजें उन्होंने बोली। रवि शास्त्री को बोला कि तू व्हाट डिड ही अचीव एज कोच। अरे इंडिया वाज द नंबर 1 टीम अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। क्या बोल रहे हैं आप? 2 बार रवि शास्त्री के कोचिंग करियर में 2 बार हम लोग टेस्ट क्रिकेट के फाइनल में पहुंचे। ठीक है, हारे लेकिन पहुंचे सही वहां पे। और रवि शास्त्री जी के ही कार्यकाल में हिंदुस्तान कभी भी टेस्ट सीरीज हिंदुस्तान में नहीं हारा। कैप्टन यूज्ड टू बी विराट कोहली, रवि शास्त्री वाज दी कोच, हेड कोच, और इनके नेतृत्व में कभी भी हिंदुस्तान नहीं हारा हिंदुस्तान में। एंड एज फार एज मिस्टर गंभीर इज कंसर्न, मिस्टर गंभीर का आप उनका माशाल्लाह उनका जो रिकॉर्ड है वो देखें क्या है। नंबर 1 न्यूजीलैंड 0-3, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वी लॉस्ट 1-3, ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, एंड नाउ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 0-2। मतलब और इंग्लैंड के खिलाफ भी आप 2 टेस्ट हारे हैं, 2 टेस्ट जीते हैं, आपने सीरीज ड्रॉ कर दी। आपने ड्रॉ नहीं करी, आपके बच्चों ने करी है ड्रॉ, तो गिव देम द क्रेडिट। आप क्यों ले रहे? मतलब 10 टेस्ट हार गए आप, 10 टेस्ट। यू लॉस्ट 10 टेस्ट एज हेड कोच। इफ दिस हैड बीन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, he would have been sacked God knows when. ये क्या है? Doesn't deserve to be there. He does not deserve to be there. That don't latch on to the post. Quit.
He is hanging on by dear life. You know, you will have to get me out of this chair. You'll have to lift me out forcefully. So people are now appealing to the Prime Minister. They are sending emails to the Prime Minister's office. They are sending emails to Mr. Jay Shah. They are sending mails to everybody. And as Saurav Ganguly says, as Ravi Shastri says, as R. Ashwin says, as even Cheteshwar Pujara says, what are you doing? Venkatesh Prasad, for example, the man who is one of the politest people you'll ever meet, he says, what are you doing? What is it that you're doing? You don't have a fixed batting lineup. You keep, कभी Washington Sundar number 3 पे जा रहे हैं और इस टेस्ट में Washington Sundar number 8 पे आ रहे हैं. What is going on? And the batsmen you have chosen don't know how to play spin. Can you imagine that? An Indian team not knowing how to play spin. Oh God, this is terrible. I could go on and on and on, but this man has to go. If he doesn't go, we're dead. We're finished. As a test team, we are finished. Let him remain as a white ball cricket coach. But my request to everybody is, request Virat Kohli and Rohit Sharma to return, put the spirit of the game back in the game and allow the Indian cricket team to become one unit. पहले आप पुरानी पिक्चर्स देखें किस तरीके से लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. और तो छोड़िए अजिंक्य रहाणे, ही इज ऑल्सो क्वेश्चन. गौतम गंभीर, और तो छोड़िए. मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से पहले हिंदुस्तानी टीम में एक यूनिटी थी, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा था पाकिस्तान की टीम खेल रही है. द वे दे वर प्लेइंग, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. And so quickly, once just few. Less than a year. Yes. The whole thing has been destroyed. We were talking about how good the team is. Yes. Now, सर मेरी बात सुनिए प्रदीप जी, ये सब जो आज हमें सुनने को मिल रहा है भारतीय टीम के बारे में, ये पाकिस्तानी टीम के बारे में सुनने को मिला करता था कि अंदर 2-2 ग्रुप्स हैं, जो पर्ची वाले लोग जो हैं सिलेक्ट होते हैं, इस किस्म की चीजें होती हैं. सर किसको मालूम था कि वही चीज हिंदुस्तान में होगी? Just one guy, 2 guys actually, this man and the other one, that Ajit Agarkar, that witless wonder. I don't know why we've got him as chief selector. Get rid of him. Get somebody who has some stature. रिक्वेस्ट कपिल देव को बुला लीजिए वापस, उनको बुलाइए. सुनील गावस्कर को बोलिए चलिए आप बन जाएं. अगर गावस्कर साहब बहुत बिजी हैं, श्रीकांत को वापस बुला लीजिए. मोहिंद्र अमरनाथ को ले आइए. मतलब ये क्या है? अजीत आगरकर चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स and the other guys in the selection committee are people you haven't even heard of, except one guy, which is R.P. Singh, who has just been appointed. Rudra Pratap Singh, who was one of our bowlers, वो अभी appoint हुए हैं. This is awful. In any event, we shall continue with this when we come back tomorrow. In the meantime, आपने अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें. Please subscribe to the channel. click on that icon, subscribe, and you subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. We will of course be back with you tomorrow from both Pradeep ji and myself and the entire team at Nation Now. We're going to be back with you tomorrow. Tab tak ke liye namaskar. And by the way, don't go away. Very soon, just after this show, as I said, we had gone and shot at Motilal Nagar, और मोतीलाल नगर में अभी क्या चल रहा है? Once again, Mr. Adani, प्रदीप जी, हर जगह जहां जाओ अडानी. वो कहते हैं भगवान जो हैं हर जगह पर हैं. श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है जहां देखो तुम्हारी मूर्त दिखती है. यहाँ पर जहां देखो सिर्फ अडानी अडानी दिखती है. सीधी बात है. उसके बारे में बात करेंगे. Don't go away. We'll of course be right back in just a couple of minutes. As far as this show is concerned, we'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.